कंटेनर्स चाहे थोड़ी सी बारिश भी हो, नहीं तो बारिश हो तो अगेन भागो, हैच कवर बंद करो, कार्गो खराब हो जाएगा। प्लानिंग, दुनिया भर की प्लानिंग कार्गोज को करना, डिफरेंट टाइप ऑफ गियर्स, पिलफरेज, डैमेज, रिस्क टू द शिप। तो हमारे लिए भी कितना बेनिफिट हो गया फॉर द शिप्स ऑफिसर्स। Now today what we will go through is a brief history, origin, diffusion. What is freight container? Container identification markings. ये आप सबने I think second level पे पढ़ चुका है, but I will just quickly refresh you. Then you have CSC. What is CSC? And how this identification of containers done, bare tier system, type and size of containers, and then the factors which are involved in planning a stowage plan. And then next comes the lashing and securing methods, stack weight, torsional stresses, anti-heeling, and carriage of reefer containers. तो आपका पूरा का पूरा इसमें कंटेनर्स में इन्हीं सारे टॉपिक्स के ऊपर आपके क्वेश्चंस बेस्ड रहेंगे. So containerization over time we see today. It took time, so many years, more than 60 years, 1956. Probably the idea of these boxes came. You can see where we are. अपने माइक से yeah, dear, can you mute your mics please? There is a lot of background noise coming somebody's mic. So what you see today, 24,000 TU, 9 high, and उससे पहले ये था, तो इस शिप को भी बड़ा शिप माना जाता था. 4 high, अरे very big ship. 2,000, 3,000 TU used to be a mainline ship, and today ये फीडर भी नहीं रह गए. Now इन सब को देखने के लिए if you see, the containerization resulted directly from the crisis that was faced by many of the world major liner companies in early 60s. Liner shipping was increasingly suffering from the severe financial burdens placed on it by the current technological state of cargo handling in port. All the ports, I am not talking about India, European ports. So आपको भी थोड़ा सा फीलिंग होता होगा कि yes, in our time we really used to get fed up. यार चलो सेल करें, बहुत हो गया, अभी तो पोर्ट में सब पैसा भी खत्म हो गया. People used to get fed up किनारा जाके. So that was real shipping. Now loading and discharging of large number of individual packages, boxes, bags, crates of bewildering varieties of shapes and sizes caused long turnaround time in port and huge wastage in the capital invested in the freighters. In USA, slightly later in Australia, whose shipping industry suffered from extremely high cost levels as well as maritime union militancy, containers were introduced as a radical measure to turn the tide. Otherwise, ये जनरल कार्गो शिपिंग जो है बहुत रेयर कोस्ट पे ही रह जानी थी. Now, instead of handling these various different size parcel ships now loaded a much smaller number of rectangular standard size boxes that a crane could stack one on top of another. And one of the pioneering companies named Sealand rapidly expanded its network. The owner was Malcolm McLean, whose father actually bought him a second-hand truck. भाई साहब आप पढ़ने में तो माशाअल्लाह हो, इसके लिए ये लोग सेकेंड हैंड ट्रक खरीद के देते हैं, start your living. And this guy became the owner of Sealand, Malcolm McLean. Now what is container ship? Is again a ship type of ship specially designed for carrying containerized cargo. Cargoes are packed into huge standardized containers for more efficient shipment. And if you see the definition of a freight container is an article of transport equipment having the following characteristics. क्या क्या? It's of permanent character, strong enough for repeated use, designed to facilitate the transport of goods by more than one mode of transport, roadways, seaways, railways. कितनी standardization होगी? All these boxes fit into the trucks, trailers, railways, ships, all securing everything is
standardized, and it is fitted with devices permitting easy handling, especially when transferring from one mode to another mode. Designed to easily fill and empty. This is basically what you see आपका एक freight container, what we see today on the roads. Now these are the various parts. I'm especially showing you because the idea is to have a little idea about the various parts of this, because tomorrow sometime it happens, cargo or the container gets damaged, so we have to make a report. So we have to exactly identify which part is damaged, so that the other people sitting at the other end, they also can pinpoint that which side. Now these are the side walls. This is basically the skeleton or the structure which actually takes the entire weight of your container. Rest is, these are just the corrugated sheets. This is called the side wall, and these are called the end walls. This is a door. Then you have this corner fitting, corner posts, and उसके ऊपर corner fittings, जिससे हम कंटेनर को उठाते हैं, load करते हैं with a spreader and down below. So please just get familiarized that in case tomorrow I have to write which part is dented, which part is broken. So it helps you in identifying the various parts of the container. Now containers, again, standardized cargo units. They are normally manufactured to sizes specified by ISO 668, but they can be manufactured in various sizes. Of course, we are familiar with 20 feet and 40 feet, and there are other containers 45, 48, 53. So that depends upon the trade. Their width is standardized 8 feet, although their height can vary. So आपने देखा होगा, sometimes we call high cube. Normally containers, standard containers are 8.5 feet, but a high cube which has got a little extra height is 9 feet 6 inches. And of course containers are referred to by the word what we call TUs and FUs. That is, it is 20 feet equivalent unit and 40 feet equivalent unit. Now why this word equivalent came? It is simple that if you see the 20 feet container is not exactly 20 feet, it is less. 20 feet containers are actually a little shorter than 20 feet. So the two 20 feet containers can be stored in a 40 feet bay. In actual dimensions, you can see 12.192 and 6.058. And this is what we call the two 20 feet containers are 76 millimeters shorter than 40 feet, what we call ISO gap. Otherwise loading discharging would have been difficult. अगर exactly same size के होते तो उनको निकालना डालना मुश्किल हो जाता. So of course these dimensions are controlled by International Organization for Standardization, and you have these dimensions of 40 feet, 30 feet. This is just for the knowledge purpose. Now comes your container identification markings. Of course, as everyone is familiar, whether you are working on tankers or anywhere, your containers उनके ऊपर कुछ ना कुछ marking होती है, उसका meaning रहता है. So container is marked on side and end walls with container number, container code, gross weight, net weight, tear weight, and cubic capacity. Now, cubic capacity is very easy to understand. Tear weight is the weight of the empty container. Net weight means how much cargo you can put, and gross means weight of the container plus the weight of cargo, what we call the gross weight. Now this container number and container code, they look something like this. TGHU 7599330. Now this first three letters are basically like, this is a container number, so this is a container company. Three letters are given to कि भाई आप अपना जो भी नाम रखना है वो चूज कीजिए. U is basically a product code, means it's a freight container. इसमें भी थोड़ी सी variations हैं, U, J, Z. We will be handling only freight containers, so MSCU या TGHU. And this is again the serial number 759933, and 0 is your check digit. Anybody any idea what is check digit? Check digit क्या होता है? सर ये एंड डिजिट होता है ड्यूरिंग द स्टोरेज प्लान. अगर वो मतलब गलत लोड हो जाती है तो चेक डिजिट से पता लग जाता है इट्स राइटली स्टोर्ड और नॉट, ऐसा कुछ बताया था. Anybody else?
सर अगर नंबर Basically, कुछ गलत verify, डाल सर अगर उसका नंबर कुछ गलत डाल देंगे स्टोरेज प्लान में, तो नंबर में सर ये जो फॉर्मूले में ये जो है ना ये चेक डिजिट, ये उसको मतलब एरर बता देगा कि ये तुमने गलत नंबर डाल दिया है। या करेक्ट। सो दिस इज बच्चे, अगर आप देखिए टुडे द कंटेनर्स, देयर आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कंटेनर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड इसको अब हाथ से तो हम लिख नहीं सकते। इवन इफ यू हैव टू लोड वन शिप, एवरीथिंग इज ऑन द कंप्यूटर। अब कंप्यूटर में मैं ही अगर टाइप कर रहा हूँ, तो इट्स वेरी मच पॉसिबल, इट्स न्यू नॉर्म ह्यूमन नेचर कि यार मैं 759933 को हो सकता है 759393 कर दूं, या एक डिजिट इधर से उधर कर दूं, इजंट इट? अगर मैंने एक डिजिट भी ये 393 कर दिया या 39 कर दिया 9933 को, तो कंटेनर बदल गया। कौन सा कंटेनर कहाँ पहुँच जाएगा? एंड टुडे व्हेन वी टाइप, सो इतनी एक्यूरेसी से इतनी उससे करना मुश्किल है। तो अगर आपने ये कंटेनर का ये जो डिजिट है, कुछ भी अगर आपने इधर से इसकी पोजीशन चेंज की कि 9933 को अगर आपने 9339 कर दिया, तो ये चेक डिजिट अगर आपने लिखा 0, कंप्यूटर आपको बता देगा नो, कंटेनर नंबर इज रॉन्ग। बिकॉज ये जो चेक डिजिट है, ये सारा का सारा इस पूरे सिस्टम से बनाया जाता है। कोई भी वर्ड इधर से उधर हुआ तो ये आपको चेक डिजिट जो है वार्न कर देगा नो। सो जो कंटेनर है वही कंटेनर जहां आपने भेजना है वहीं जाएगा। सो देयर कैन नॉट बी एनी मिस्टेक, अदरवाइज इट इज़ वेरी कॉमन। इतने डिजिट को लिखना, जल्दी जल्दी आप टाइप कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 की बजाय 1 3 4 5 लिख सकता हूँ मैं। मिस भी हो सकता है, मिस तो नहीं खैर होगा, बट नंबर इधर से उधर हो सकता है। सो ये चेक डिजिट की कैलकुलेशन है, आज तो नहीं, आई विल सी इन केस वी हैव अ टाइम, आई विल send you notes also on this. So ये कई बार आई थिंक एक आधी बार क्वेश्चन भी आया हुआ है, हाउ टू कैलकुलेट द चेक डिजिट की कैलकुलेशन कैसे होती है। तो बेसिकली इट इज सिंपल, ओनर कोड, प्रोडक्ट कोड, सीरियल नंबर एंड चेक डिजिट। एंड ये आपका नीचे कंटेनर कोड है 45G1 एंड रेस्ट आई थिंक इज सिंपल, मैक्सिमम वेट, कंटेनर वेट, payload and cubic capacity. I think anybody can write anything what this means. So owner code is again unique, consisting of 3 capital letters. Product group code consisting of one of the capital letter U, J or Z. So it is like this, MSCU 1 2 3 4 5 6, and this is basically a check digit. So check digit is a function of, not first, it is function of all these digits. आपके पूरे नाम का फंक्शन से ही चेक डिजिट निकाला जाता है। If a container number is entered into computer with any one digit including check digit wrong, the computer will not accept it. That's the idea of check digit. So आपको थोड़ा सा इसका आइडिया होना चाहिए। कंटेनर कोड ऑफ कोर्स, हाँ जी सर ये चेक डिजिट सबके लिए अलग अलग होता है क्या, कंटेनर्स के लिए? ये नंबर, जैसा जैसा नंबर होगा उसके अकॉर्डिंगली ये चेक डिजिट बनेगा। कई बार 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। इट इज़ बेसिकली एक थोड़ा सा मैथमेटिक्स है जिसकी इसको उन्होंने कोडिंग दे दी हुई है, एंड उसको फिर 10 या 11 से डिवाइड करो, फिर जो रिमाइंडर का सबको थोड़ी मल्टीप्लिकेशन करके सम करके फिर उसको मॉडुलस से डिवाइड कीजिए, फिर जो रिमाइंडर आएगा वो यहाँ पे लिखा जाता है। तो इनकी पोजीशन इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 4 5 6 है। अगर इसको मैं 1 3 2 4 5 6 कर देता हूँ, ये चेक डिजिट चेंज हो जाएगा। दैट इज़ द आइडिया, वेरी कॉमन। 1 2 3 है, मैं भी कंप्यूटर पे, एनीबडी, कोई कितना भी जीनियस हो, टाइपिंग एरर हो सकती है, तो कंटेनर बदल जाएगा, बट ये कंप्यूटर आपको वार्न कर देगा नो, प्लीज चेक द कंटेनर नंबर। सर ये जो कंटेनर नंबर होता है वो हर कंटेनर की मतलब एक तरीके से जब कंटेनर बनता है तब फिक्स हो जाता है, एंड देन दे यूज इट फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स, या फिर एवरी वॉइड इट गोज? नो नो नो, ये इट रिमेन सेम। कंटेनर नंबर आपके ओनर का है कि उसने जो उसको सीरियल नंबर इट इज़ बीन अलॉटेड, दैट नंबर रिमेन सेम, ये नंबर नहीं चेंज होगा। ओके सर, मतलब जब कंटेनर बनता है तब एक बार अलॉट हो जाता है एंड देन इट कीप्स सेम फॉर द लाइफ टाइम फॉर द कंटेनर। करेक्ट करेक्ट। तो इसमें जो प्रोडक्ट कोड है एक तरीके से उसी प्रोडक्ट के लिए देन वी विल कीप ऑन यूजिंग द सेम कंटेनर। यस, जैसे आपने ये देखा ना, यहाँ लिखा है TGHU, मैं इसको चलो सिंपल करता हूँ, MSCU। अब जैसे हाँ ये सर, MSCU है, तो U का मतलब ये आ गया U कंसिस्टिंग ऑफ वन ऑफ द कैपिटल लेटर UJZ। ये सर U मीन्स फॉर ऑल फ्रेट कंटेनर्स, जैसे इसने लिखा है MSCU मीन्स इट्स अ फ्रेट कंटेनर।
जे आ sir. गया, MSC J, MSC Z आ गया, that means it is detachable freight container, related equipment and trailer and chassis something else. Okay sir. Mostly on the ship we will be handling only freight containers, हम chassis चूसीज या दूसरा उसका related equipment को हैंडल नहीं करेंगे. अगर होगा भी तब भी उसका हो सकता है अलग से आ जाए, प्लेटफॉर्म आ जाए, कोई दूसरे टाइप की चीजें आ जाए उसमें. ये उस पे जे हो सकता है, अदरवाइज हाँ जी, उस पे ओजी लोड करते हैं सर. नहीं ओजी बच्चे अलग चीज. ओजी इज अगेन, ओजी आपके उसने बेसिकली कंटेनर यूज किया या ओपन टॉप कंटेनर यूज किया है या बेसिकली से प्लेटफॉर्म यूज किया है, कुछ भी है, उसका नंबर वो सेम रहेगा. ओजी इज आउट ऑफ गेज, मतलब कि आपका जो आपने कार्गो लोड किया है, मशीनरी लोड की है, वो थोड़ी एक्सटेंड कर रही है उसके बाहर, के नंबर्स आपके सबके सेम रहेंगे. तो दिस इज जस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन. ये सिस्टम आजकल नहीं चलता कंटेनर कोड में. कंटेनर कोड में जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, नाउ दिस कोड इज, दिस इज कंटेनर कोड 45G1. तो पहले ये दूसरा था 2210, अब ये 45G1 मीन्स इससे दूर से पता लग जाएगा 40 फीट कंटेनर है. 5 का मतलब है कि ये ओवर हाई क्यूब है. G मीन्स इट इज अ जनरल कंटेनर. सो इसका भी आपको यू विल सी दिस दैट इट इज लाइक दिस. 45G1 मीन्स 4 इज द लेंथ, 40 फीट 2 लिख देंगे तो 20 फीट बन गया. हाइट इज 5, इट इज ओवर हाइट और जिसे कहते हैं ये ओवर हाइट कंटेनर. एंड G1 इज अ जनरल कंटेनर. First character related to the length, second character related to the height, and remaining 2 elements sequence identify the container type and characteristics. So basically अगर आप देखिए length 2 is 20, 4 is 40, L is 45, M is 48 अलग अलग है. Height 2 आया तो 8 feet 6 inches, 5 आया तो 9 feet 6 inches. and ये आपका G1 जनरल. refer होगा तो R1 लिख देंगे. simple to understand. इंस्टेड ऑफ कोडिंग के बजाय उसने दूर से ये कि यस, अगर आप देखते हो कि हाँ यार 45G1 या 45R1, दैट मीन्स 40 फीट कंटेनर, ओवर हाइट, हाई क्यूब एंड रीफर. अब ये देखिए U1 आ गया तो वहाँ यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई कर देगा. ओपन टॉप, P1 इज प्लेटफॉर्म, T1 इज टैंक. तो यहाँ से अगर मेरे पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेरे को खाली यही देखना है 45G1 P1 T1 क्या है. दिस इज कंटेनर कोड. सो ये आइडेंटिफिकेशन, वैसे तो आपको ये क्वेश्चन आना नहीं चाहिए, अब तो सेकंड मिनट तक ये ख़त्म हो जाता है, बट एनीवे दीज आर द चेंजेस. दिस इज़ द लेटेस्ट वे ऑफ आइडेंटिफाइंग और मार्किंग द कंटेनर्स. सो थोड़ा सा यू शुड बी ऑल्सो अवेयर. एंड बाई चांस क्वेश्चन आता है तो ये डिटेल नहीं, आपको सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिखना है कि यस व्हाट ऑल मार्किंग्स आर देयर एंड ब्रीफली ओनर कोड, प्रोडक्ट, सीरियल नंबर, चेक डिजिट. अब आप क्या इसके साथ ही एक बार आई थिंक यस क्वेश्चन है आपके भी उसमें, व्हाट आर द कंटेनर मार्किंग, व्हाट आर द मार्किंग्स ऑन द कंटेनर. सो उसमें एग्जामिनर इज इंटरेस्टेड कि ठीक है, ये नहीं कि हमने यहीं पे रुक जाना है. कंटेनर नंबर, कंटेनर कोड, ग्रॉस वेट, नेट वेट, क्यूबिक कैपेसिटी. इन एडिशन टू दैट what all is marked there. In addition to that, this is important, safety approval plate. Every approved container must carry a permanent fixed safety approval plate in a readily visible place where it will not be easily damaged on a closed container, and normally this is on one of the doors. अब ये जो CSC safety approval plate आई, basically there is a convention. There was a convention which took place, Convention on Safety of Containers 1972. Now imagine IMO की विजन कितनी थी, लेट 60s और आई थिंक 50s, यस 56 में तो खाली उन्होंने स्टील के बॉक्स बनाए. एंड अगेन 60s तक स्टील बॉक्सेस वर जस्ट यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग कार्गो. एंड इमीडिएटली इन 60s ओनली द IMO रियलाइज कि दिस इज गोइंग टू बी द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. एंड IMO का मेन जॉब है कि हाँ यार ये जो बॉक्सेस आप कैरी कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड बी सेफ्ड. इट्स लाइक अ शिप. So idea of this convention which took place in 72 had two goals: to maintain high level of safety of human life in transport and handling of containers by providing acceptable test procedures and related strength requirements. जैसे शिप था, सेम लाइक क्लासिफिकेशन सोसाइटीज केम कि भी जो शिप आपने सी में भेजना है सेफ होना चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ, मटेरियल, वही चीज़ कंटेनर्स पे आ गई.
and to provide uniform international safety regulations equally applicable to all modes of surface transport. So ये दोनों चीज़ों को देखते हुए basically this convention, छोटी सी बुक है ये, of course I'll see if I have with me, but otherwise क्वेश्चन अगर आपको कोई पूछे यार CSC क्या है, it's a Convention on Safety of Containers 1972. It was basically that convention was signed by all the concerned people and it came into force. And ये आपकी सेफ्टी के लिए कंस्ट्रक्शन, उनकी स्ट्रेंथ एंड इवन उनकी जो इंस्पेक्शन है, ये नहीं इसलिए का शिप, ये तो है नहीं कि शिप बन गया उसके बाद नोबडी बॉदर्स, सर्विस, रेगुलर सर्विस, तो इनका भी रेगुलर इंस्पेक्शंस चलती रहती. Now the introduction of a transitional period, of course चलो ये तो written है. Safety approval plate should be a permanent non-corrosive fireproof rectangular plate. उसका size, उसकी everything is standardized. Plate should be headed CST safety approval in letters at least 8 mm in height and 5 mm, at least 8 mm high, and all other information on it should be. So उसने ये standardize कर दिया. So it is like a license कि जैसे कंटेनर इन यूज है तो उसके ऊपर ये प्लेट लगी होगी. दिस कंटेनर इज डीकमीशन, बाई चांस उसकी स्ट्रेंथ या वो खराब हो जाता है, टूट जाता है, कुछ भी है, सो क्लासिफिकेशन जब इंस्पेक्शन करेगी, इफ दे डोंट फाइंड इट इज सूटेबल, दे टेक आउट दिस प्लेट. सो छोटी सी प्लेट जो है अगर उसके ऊपर नहीं है, दैट मीन दिस कंटेनर कैन नॉट बी यूज्ड, इट इज डीकमीशन, आउट ऑफ सर्विस. सो इंफॉर्मेशन शुड बी इन इंग्लिश और फ्रेंच, नॉर्मली इट इज इन इंग्लिश. अब उन्होंने क्या किया कि ये तो एक CSC प्लेट चली थी, अब उसके बाद कस्टम्स भी आ गए कि भाई यू आर यूजिंग दिस बॉक्सेस फॉर द, आपने तो बंद करके रख दिया, उसके अंदर क्या डाला है, तो कस्टम्स का भी वो है. तो उन्होंने भी अपना कि भैया सिस्टम जो है, उन्होंने भी क्लास को कह दिया कि ओके प्लीज सी दीज थिंग्स, इट कैन नॉट बी ओपन. एक बार कस्टम सुपरविजन के अंदर एक कार्गो स्टफ होता है, सो नोबडी शुड बी एबल टू ओपन इट एंड देन इट इज़ अप्रूव. वो भी उन्होंने दिखा दिया कि हाँ यार इसका जो डोर्स हैं उसके ऊपर सील लगा दीजिए, कस्टम वाला सील लगा देगा, यू कैन नॉट ओपन इट. तो पहले ये सारी अलग अलग प्लेट्स थी, कस्टम प्लेट अलग, CSC प्लेट अलग, टिम्बर ट्रीटमेंट, तो उन्होंने कहा यार ये तो खिचड़ी पक रही है. सो नाउ यू हैव अ कंबाइंड CSC प्लेट व्हाट वी कॉल, जिसके ऊपर कस्टम प्लेट भी है, CSC भी है एंड आपका टिम्बर ट्रीटमेंट, बिकॉज इसके अंदर जो इसका बेस है, जो बॉटम है, इनर बॉटम, उसके अंदर भी वुडन शीटिंग रहती है. A lot of countries are objective to that. इसके अंदर भी कुछ जर्म्स हो सकते हैं एंड पॉसिबल भी है. सो दिस ट्रिम्बर विच इज यूज शुड बी ट्रीटेड, ताकि इसके अंदर कोई इंसेक्ट या कोई चीज़ जो है ना लगे. सो इट इज़, उसका भी सर्टिफिकेट इज सॉर्ट ऑफ इन अ वे ऑफ दिस प्लेट्स आर देयर. तो ये सारी चीज़ें लिखी हैं, व्हाट इज़ 1 2 3 4 5. बेसिकली दिस इज़ द क्लासिफिकेशन का जो है अपना सोसाइटी का अप्रूवल नंबर होता है, ग्रेट ब्रिटेन. एंड दिस इज अगेन लाइक सेम हियर, BV, ब्यूरो वेरिटास, डेट मैन्युफैक्चर, सर्टिफिकेशन नंबर, ये भी उन्हीं का क्लास का ही नंबर है. सो इट इज़ नॉट अ कंटेनर नंबर, इट इज़ अ क्लास का. इट्स लाइक हमारी जो कारों की व्हाट वी कॉल द नंबर प्लेट. सो उससे वो ट्रैक कर सकता है भी ये कंटेनर कब लास्ट इंस्पेक्ट हुआ था, इसका क्या स्टेटस है. दिस इज आइडेंटिफिकेशन नंबर. Then again maximum operating gross mass, कि आप मैक्सिमम उसमें कितना उसका वेट होना चाहिए इंक्लूडिंग कार्गो. अलाउेबल स्टैकिंग वेट फॉर 1.8 G, वो भी वहाँ पे लिख देते हैं. So this we will discuss later once we come to that stack weight and all that. And transverse racking test, तो हर कंटेनर का रैकिंग टेस्ट भी किया जाता है, दैट हाउ मच रैकिंग फोर्स दिस कंटेनर कैन बियर. सो उसका टेस्ट, उसकी वैल्यू भी यहाँ पे है. सो दिस डेटा इज important for all the people. And again first maintenance examination date, next इसका examination कब ड्यू है. most of the time हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, बट किनारा में all these people who are handling these containers, तो सारे के सारे इसको चेक करके तभी ये कंटेनर आपके पास शिप में आता है. तो ये सारा मैंने डिटेल में लिखा हुआ है, what is 1 2 3 4. I'll send you these notes, please go through. अगर कुछ समझ नहीं आता तो I think it's very simple. Now comes the container identification. यार ये जो कंटेनर है, इनकी आइडेंटिफिकेशन का क्या सिस्टम है. अब वैसे तो कार्गो शिप्स में तो हमने देखा है, चाहे बल्क कैरियर हो, टैंकर हो, विनो हो, नंबर 1 होल्ड, नंबर 2 होल्ड, नंबर 3 होल्ड, नंबर 4 होल्ड.
टैंकर्स पे 1 अक्रॉस 2 अक्रॉस 1 पोर्ट स्टारबोर्ड 1 विंग्स 2 विंग्स, टैंक्स के नंबर हमारे पास हैं। अब यहाँ पे भी होल्ड्स तो हैं, तो शिप इज सेम एज जनरल कार्गो शिप लाइक होल्ड्स, बट इसके अंदर जो कंटेनर्स हैं दे आर लोडेड लाइक अ सेल, सो ईच कंटेनर हैज इट्स ओन सेल। सो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इफ यू लुक एट दिस, यार हमें 3 चीज़ें चाहिए कि एक तो ये आगे से पीछे तक जिसे हम बेस कहते हैं, एंड देन पोर्ट टू स्टारबोर्ड जिसे हम रोज कहते हैं, एंड थर्ड थिंग इज द कि भैया कौन से टीयर पे है, बॉटम में है 1 2 3 कौन से टीयर पे है। तो ये 3 चीज़ें अगर मेरे को पता लग गई तो आई कैन ईजीली आइडेंटिफाई। सो दिस आइडेंटिफिकेशन, फर्स्ट थिंग इफ यू सी दिस होल थिंग, अगर वी सी फ्रॉम द साइड फ्रॉम फॉरवर्ड टू आफ्ट वी कॉल इट द बेस, to be counted in the direction from forward to aft, row to be counted in the direction from ship center line to port and starboard, and tier in the vertical direction. So basically it is simple to understand. अगर आप देखिए like this is your ship, and if I am looking from the side, so these are normally the 1 3 5 7 9 11, so these bays are numbered with the odd numbers like 1 3 5 7 9. These are the 20 feet bays right from down below to on deck. So this will be 0 1 0 3. अब अगर मैं ये दो बेस को, दो 20 फीटर को रिप्लेस करके 40 फीटर लाइक दिस 40 फीटर लोड करता हूँ, तो इसका बे नंबर जो है इन दोनों के बीच वाला आ जाएगा 10. So 40 फीटर बेस आर 2 6 10 14 18 22. So वहीं से मेरे को पता लग जाएगा ये कंटेनर जो है 20 फीटर है 40 फीटर है. So अगर उसका बे नंबर 1 3 5 7 कुछ भी है, that means it is a 20 footer container. So again your bays are right from forward. यहाँ से यही जैसे this whole thing is one bay, one bay, one bay, one bay, one bay. And in row numbering, if you see, rows are basically across the third ship port to starboard. So they start from center, odd numbers starboard side, even numbers port side. 1 3 5 7 on starboard, 2 4 6 8 10 on the port side. So I can easily identify कि अगर बे 05 है, that means it is a 05 bay from forward, and it is रो भी 05 है, that means this container is starboard side. तो मैं इसको काउंट कर सकता हूँ that it is a third container from the center 05, and deck के जो tiers हैं, so basically rows are numbered like this 0 0 1 3 5 7 9 and 6 8 10 12 14 16, and tiers के लिए right on deck normally we start from 82 84 86 88 90, and deck पे very rare, अगर आपने deck पे किया है normally containers will load on the hatch covers, pedestal के साथ hatch cover पे आता है, but some ships you can have then it is 80. So normally these tiers start from 80 82 84 86, so that way very easily I can identify. Under deck अगर आप देखोगे, so these tiers are basically start from 2 4 6 8 10. So under deck हमने देखा है, yes, if you see this, so these are 2 4 6 8 2 4 6 8 10 12 14, ऐसे ये ऊपर आता जाएगा. ऑन डेक जब आएंगे तो ये 80 से या 82 से शुरू हो जाएंगे, 82 84 86. Nowadays of course these ships are becoming bigger and bigger, तो अब ये भी जो है टीयर्स भी खत्म होने वाले हैं कि यार उन्होंने 80 से तो शुरू किया थे तो 100 पहुंच जाएगा. सो आई थिंक नाउ दे स्टार्ट विद 70 72 74 76. And if you have worked on these bigger ships? Yes sir. Yeah, so 80 के बजाय I think now they have started with 70, isn't it? Not sir, अभी तो 80 चल रहा था. 80 चल रहा है. हाँ सर. तो ये तो है 1 2 3 4 5 6 हाई पे है, मतलब 9 10 हाई वाले हैं. there are 9 highs are common. Yes sir, वो 10 11 हाई वाला था. या उस पे उन्होंने 70 से शुरू कर दिया इसको, 72 74 76 78. सो थोड़ा सा अवेयर रहिए, कई बार सर्वेज होते हैं, दे एक्सपेक्ट यू टू नो व्हाट इज लेटेस्ट हैपनिंग इन द मार्केट एंड ऑल दैट. सो पुराना सिस्टम नोबडी वांट्स टू रिमेंबर. दिस इज दिस टीयर नंबर जो है 70 से आ रहा है व्हेन दिस. सो बेसिकली आपका कंटेनर शिप लुक्स लाइक दिस, नॉर्मल होल्ड, but these holes are bigger. The opening you can see hardly
a small place to walk, main deck, and entire thing is cut open. Opening is cut open, so you can imagine the amount of stresses. Bulk carriers, tankers पे देख लीजिए, this deck is completely a box, पूरी स्टील प्लेट से कवर है, और यहाँ तो completely open है. Sometimes तो लगता है यार टग ने थोड़ा सा पुश किया तो ये तो बल्कहेड अंदर आ जाएगा, but anyway it's taken care. बिल्डर है, नेवल आर्क्स शिप बिल्डिंग, इट्स अ, कहते हैं the guy who builds a ship is a genius, so they take care of all the strength. So basically you load these boxes straight away into the holes, like these cell guides are there, no need, nothing required. Cell guides are just the angles, basically they are the angles welded, और इसके अंदर ये बॉक्स स्लाइड करता हुआ चला जाता है. At some time आपको ये स्पेस मिलेगी. शिप इज कर्विंग डाउन बिलो, स्पेशली फोर एंड आफ्ट एंड्स में अगर आप देखोगे तो इसको यहाँ पे एक परमानेंट ऐसे स्ट्रक्चर विच इज यूज्ड फॉर बैलास्ट, ताकि ये राउंड पार्ट में तो कंटेनर नहीं लोड होगा, अब इसको स्क्वायर बना दिए. सो ही लोड्स द कंटेनर ऑन टॉप ऑफ दिस बॉक्स विच इज अ साइड टैंक, उसके अंदर इंक्लूड होता है. सो दिस इज बेसिकली द आइडेंटिफिकेशन of your containers by this bays, rows and tier system. अब इसके अगर आप कार्गो प्लान भी देखिए तो वेरी सिंपल. सो ईच रो, ईच बे, आप उसकी सेपरेट प्लान भी निकाल सकते हो, एंड ये सारी की सारी बे जो हैं आप एक A4 शीट पे सारी बे जो हैं वो भी आ सकती हैं. सो व्हेन यू मेक दीज प्लान्स, or you can take out the printout from the lodicator as a duty officer, as a chief officer, so you know, but it is difficult, nobody can remember कि कौन सी बे में कौन सा कंटेनर है, कौन सी पोर्ट का कंटेनर है. डिफिकल्ट, the ships are huge, so you look at the plan, you know. and discharging वगैरह भी easy है कि आपने इसको कलर कोडिंग कर दिया. टोक्यो येलो वाले, सपोज द शिप कम्स टू टोक्यो, सो यू नो यार येलो कंटेनर जो हैं सारे ऑफलोड करने हैं. So again यहाँ पे got to be careful, short landing और ओवर कैरेज, so उसका ध्यान तो हमें रखना ही पड़ेगा. So आइडिया था कि यस, so अगर इसको हम कलर कोडिंग करते हैं तो थोड़ा इजी हो जाता है. So अगर बाई चांस एनी क्वेश्चन कम्स हाउ टू मेक अ स्टोरेज प्लान, आई थिंक वेरी इजी. So these are the अंडर डेक कंटेनर्स, होल्ड के अंदर 2, 4, 6, 8, 10, these are the tiers, बॉक्सेस ही बनाने हैं. And these are the rows 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8. ये आपका हैच कवर, and these are the on deck containers. And this is your bay number 19 and 21. So if the question comes, I think very easily you can show the stowage plan of a, or the bay plan of a container ship looks like this. अब आ जाता है आपका टाइप्स ऑफ कंटेनर्स. टुडे कंटेनर्स ने तो पूरा का पूरा सब शिप्स को पीछे छोड़ दिया. दे कैन कैरी एनीथिंग, राइट फ्रॉम जनरल कार्गो टू बल्क, इवन केमिकल्स, ऑयल, एनीथिंग दे कैन कैरी. सो यू हैव ऑल टाइप ऑफ कंटेनर्स टुडे बिल्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, शिपर्स रिक्वायरमेंट. जिस चीज़ का ट्रेड है उसके अकॉर्डिंगली कंटेनर्स आपके बन जाते हैं. बेसिकली कंटेनर्स आर डिवाइडेड इनटू 2, जनरल कार्गो एंड स्पेसिफिक कार्गो कंटेनर्स. सो जनरल पर्पस इज अ कंटेनर विच इज टोटली एनक्लोज्ड, weatherproof, has a rigid roof, rigid side walls, rigid end walls, and at least one of which is equipped with doors and a floor. This is your general purpose container. And it is intended to be suitable for transport of cargoes in greatest possible variety. A GP container having an opening roof may be used for same specific purpose as an open top container. ये आपका जनरल पर्पस देखिए. दिस इज हाउ द बेसिकली द बॉक्स लुक्स लाइक दिस, एज गुड एज अ बिग रूम. आप इस स्पेस में बनाते हैं. ये जो पट्टी है, दिस शोज दैट इट इज अ हाई क्यूब 9 फीट 6 इंचेस का स्पेसिफिक पर्पस कंटेनर्स. अगेन व्हिच कंस्ट्रक्शन फीचर्स. सर किसी का माइक ऑन है सर, आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी.
से कहा तो है मैंने कि शुड कीप माइक्स ऑफ। या गौरव आपका ऑन था बच्चे, कीप योर म्यूटेड रखिए माइक्स को, आपने बोलना है दैट टाइम आप ऑन कर लीजिए। बैकग्राउंड नॉइस है, वी नो वी आर लिविंग इन डिफरेंट एरियाज, कहीं सब्जी मंडी, कहीं फ्रूट वाला, कहीं रिपेयर वाला, सब चले रहते हैं। रास्ते में से सामान भी ले आते हैं फिर करते करते। तो आई नो all of us are not living in very sophisticated or expensive colony जहाँ पे किसी को अलाउड नहीं है, few of you may be, so even मेरे घर के बाहर भी हर 10 मिनट के बाद सब्जी वाला, तो आई हैव टू क्लोज 2-3 जितने दरवाजे बंद कर दें ताकि आवाज़ ना आए। सर साउंड प्रूफिंग करवा लीजिए सर, अकॉस्टिक साउंड प्रूफिंग। इतना पैसा नहीं है ना, आप लोग अमीर आदमी सर हो। कैसी बातें कर सकते हैं मतलब ये तो चलो ठीक है, ओके। अब आगे आपका स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंटेनर्स, जिस चीज़ के लिए आपको चाहिए उस चीज़ के लिए भी कंटेनर्स बन जाते हैं। वेंटिलेटेड कंटेनर्स, क्लोज्ड वेंटिलेटेड, ओपन टॉप, प्लेटफॉर्म बेस्ड कंटेनर्स। सो इनके थोड़े से मैं आपको इमेजेस दिखा सकता हूँ, रेस्ट आई थिंक इट इज़ वेल सर अंडर। एक क्वेश्चन है हाँ जी सर, जैसे सर स्पेशलाइज्ड कंटेनर बनेगा बट कंटेनर कोडिंग एंड मार्किंग विल बी सेम, जैसा आप बता रहे थे, जैसे एमएससी यू, तो यू Yeah. की जगह कुछ और हो जाएगा, करेक्ट? नो, कंटेनर को देखिए, कंटेनर अगेन इज अ डिफरेंट टाइप एज लॉन्ग एज इट इज अ फ्रेट कंटेनर। अब देखिए एग्जांपल यहीं पे है, अब ये भी कंटेनर ही है, चाहे ये ओपन टॉप यस सर, हो गया तो इसका भी यू ही रहेगा। यू ही रहेगा। दिस इज अ फ्रेट कंटेनर, बट इसमें टाइप्स आ गई आगे, है ये फ्रेट कंटेनर। हाँ सर, इट इज़ नॉट अ ट्रेलर और समथिंग एल्स कि हाँ यार उसको हम खींच रहे हैं या कुछ एसोसिएटेड चेसी या कुछ और है, ये कंटेनर है बट इट इज तो डिफरेंट मतलब टाइप। सर एक तरीके से हम लोग बिना कंटेनर को देखे ये नहीं बता सकते कि वो क्लोज ही रहेगा, मतलब 4 वॉल, मतलब एक तरीके से उसकी सारी साइड्स क्लोज होंगी। इट कैन बी ओपन टॉप आल्सो। यस यस इन यस इन द कोड वी कैन नॉट नो कि इट इज ओपन टॉप और नॉट। यस, या दैट वी कैन नॉट नो। सो वो आपके ओके पास सर, है कि यस एमएससी यू मींस ठीक है, कंटेनर आ रहा है, अब उसमें ओपन टॉप भी हो सकता है, प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, साइड वॉल्स उसकी खुली हो सकती हैं, ये सारा का सारा बेसिकली स्ट्रक्चर तो इसका ये है जो एक्चुअल वेट। फिर सर इस तरीके के कंटेनर्स का फिर सर स्टोरेज कैसे डिसाइड होता है? मतलब अब इट इज अ ओपन टॉप, दैट मीन इट इज सपोज्ड टू बी केप्ट ओपन, राइट? नो सो नो, हाउ? आई विल कम टू दैट। ओपन टॉप बेसिकली अगर आप देखिए एग्जांपल, ये ओपन टॉप का पर्पस क्या है, अब ये कंटेनर है, ये तो खोल के दिखा दिया। नाउ आई एम गोइंग टू लोड अ जनरेटर, एग्जांपल आई वांट टू ट्रांसपोर्ट अ जनरेटर। अब जो हो सकता है यहाँ से दरवाजे से ना जा सके, मैं उसको क्रेन से उठा के ऊपर से, ये तो बेसिकली जस्ट उसे कहते हैं कि उसने वो लगाई हुई है वायर्स या समथिंग फॉर द कवर डालने के लिए, अदरवाइज ये ओपन है। Yes. तो मैंने क्रेन से उठाया और जनरेटर रख दिया। अब जनरेटर रख तो दिया, पर जनरेटर का जो एग्जॉस्ट पाइप है वो कंटेनर से बाहर आ रहा है। सर ये सबसे Okay. ऊपर लोड होते हैं सर, सबसे टॉप पे। करेक्ट। सो आइडिया क्या हुआ कि अब जब मैंने इसकी स्टोरेज बनानी है तो मेरे को पता है, तो हम इसे OOG कह देंगे, दैट मीन्स इट इज आउट ऑफ गेज, कि यार इस कंटेनर में जो कुछ ना कुछ बाहर आ रहा है। अभी कई बार होता है, Okay. चलो यहाँ पे मैं रखता हूँ, मैं आगे आपको दिखाऊंगा, लाइक अ प्लेटफॉर्म ऐसा कंटेनर। अब मैंने अपनी कार लोड करनी है या मैंने जेसीबी लोड करनी है, अब जेसीबी सर, मैं यहाँ पे तो रख दूंगा, बट जेसीबी हो सकता है बाहर एक्सटेंड करे, हाँ सर, तो वो सर ओओजी कहाँ लिखा होगा सर? या तो वो आपके पेपर्स में आ जाएगा, डॉक्यूमेंट्स में आ जाएगा कि यस कि दिस इज OOG मीन्स कि इसके जो अंदर कार्गो है वो बेसिकली बाहर एक्सटेंड कर रहा है, इट इज आउट ऑफ गेज। OOG का मतलब होता है आउट ऑफ गेज। ओके सो सर, आपको बता देंगे, प्लानर बता देगा कि यस इट इज आउट ऑफ गेज। अब आउट ऑफ गेज है तो मेरे को पता है कि इसके साथ वाला जो है वो सेल मेरे को खाली रखना पड़ेगा, इस तरफ वाला खाली रखना पड़ेगा, दैट्स ऑल। ओपन टॉप बाहर से कुछ अगर प्रोट्यूड कर रहा है, लाइक यू आर कैरिंग जिराफ, आपने जिराफ यस अंदर सर, डाल दिया, उसकी गर्दन तो बेचारे की बाहर रहेगी ना, तो उसको हम टॉप यस पे सर, रखेंगे, उसके ऊपर कुछ और नहीं डालेंगे। हाँ सर। तो ये सारी प्लानिंग के टाइम में आएगा। और सर अगर नॉर्मल है, मतलब इट इज विद इन द गेज ऑफ द कंटेनर ओनली, बट इट देन इज अ ओपन टॉप कंटेनर, देन इट विल बी ट्रीटेड एज अ नॉर्मल कंटेनर, और किसी भी उसको टेयर एंड बे में डाल देंगे। करेक्ट करेक्ट, नॉर्मली हम करते हैं जैसे ग्रेनाइट, वेरी कॉमन, ग्रेनाइट मार्बल, उसकी जो ह्यूज रॉक्स हैं, पूरे के यस पूरे सर, बिग ब्लॉक्स जो हैं, वो क्रेन के नीचे, क्रेन से फोकलिफ्ट तो उसको उठा नहीं सकती, तो क्रेन के नीचे कंटेनर ले जाते हैं, ऊपर से उसको ब्लॉक को डाला एंड उसको रख दो खुला।
डेक पे भी कैरी कर सकते हैं कि बाई चांस बारिश पानी स्प्रे जाता है तो उसमें उस टाइप का कार्गो होगा जो डैमेज ना हो। ये तो है नहीं कि कोई मशीनरी डाल दी जिसमें स्प्रे किया तब डैमेज हो गया, तो उसको उसमें नहीं डालेंगे। So that way it is like a multi-purpose. Anything, any purpose you can solve with this type of containers. ओके सर। Flat rack, this is basically a flat rack. आप कोई भी साइड्स को collapse कर सकते हो, साइड वाली साइड भी निकाल दी आपने, ये भी निकाल सकते हो। Platform based containers basically if you see they are just like skeletons. पहले ये थर्मल वाले चलते थे, अब ये इनका जमाना खत्म हो गया। सी थिंग्स आर चेंजिंग, टेक्नोलॉजी चेंजिंग एवरी डे। शुरू में कैसे बॉक्स बने, फिर उन्होंने कहा यार अच्छा सम सॉर्ट ऑफ लाइक टेम्परेचर कंट्रोल्ड है, इसको उन्होंने इंसुलेट कर दिया, सब फेलियर। अब आपके पास ये आ गया जिसके अंदर उसने पूरी मशीनरी भी फिट कर दी, व्हाट वी कॉल द रीफर कंटेनर्स। फैंटास्टिक थिंग। सर प्लेटफॉर्म कंटेनर कैसा होता है, वो दिखाएंगे? हाँ जी, प्लेटफॉर्म कंटेनर या वो बेसिकली टेम्परेचर है कि यस, जो अगर आप रेफकॉन कहते हो ना, रेफकॉन इज बेसिकली आपका जो है, यू आर टॉकिंग अबाउट रेफकॉन इज इट? मैं बोल रहा था सर प्लेटफॉर्म कंटेनर कैसा होता है, वो दिखा देंगे? अच्छा, प्लेटफॉर्म कैसा होता है, ओके दिखाते हैं। चलो प्लेटफॉर्म देखना है आपने, ये लीजिए आपको। ये प्लेटफॉर्म, अब इसके ऊपर कुछ भी कार्गो कीजिए। अब इसको जो लोडिंग और डिस्चार्जिंग जो है उसके लिए स्पेशल स्लिंग होगी, उसकी बेसिकली 4 लेग्स होंगी, फिर उसके ऊपर वो स्प्रेडर के नीचे 4 लेग्स अलग से ऐसे लटक रही होंगी, मतलब स्प्रेडर के साथ ही अटैच होंगी, एंड फिर वो इसको डालेगा एंड इसको उठा ले। ओके सर, ये पूरा ओपन ये जस्ट प्लेटफॉर्म है, या सिंपल प्लेटफॉर्म है। या सिंपल प्लेटफॉर्म है। इसकी साइज जो है, लेंथ ब्रेड जो है आपकी नॉर्मल होगी। आपने देखा होगा मैंने आपको भेजा, फ्लैट रैक की सारी साइड्स निकाल के ये नहीं बनेगा क्या? ये बन जाएगा ना प्लेटफॉर्म? या बन जाएगा, वो भी बन जाता है। मैंने आपको देखो एक भेजा है उसका लोकोमोटिव्स का, नोट्स में भेजा ना एक लोकोमोटिव्स। जी हाँ जी, हाँ जी। हैवी लिफ्ट में उसमें यही है, उसने देखो कंटेनर शिप पे उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर उसने लोकोमोटिव यूज़ किए। देखो वहाँ पे ये यूज़ हो सकता है बिकॉज ये तो सेल गाइड ने पकड़ लिया, इसकी सिक्योरिंग। प्लेटफॉर्म तो सिक्योर्ड है बाय द सेल गाइड, लोकोमोटिव इसके ऊपर उसने सिक्योर कर दी। हाउ इजी इट बिकम्स। तो प्लेटफॉर्म का बेस्ट यूज़ आपका वो लोकोमोटिव वाली जो स्लाइड अगर आप देखोगे, जो नोट्स देखोगे, तो वहाँ आपको पता लग जाएगा प्लेटफॉर्म कहाँ कहाँ यूज़ हो सकते हैं। ये आपके फ्लैट ट्रैक है, ये आपका टैंक कंटेनर, एनी लिक्विड एनीथिंग यू कैन कैरी। बेसिकली ये स्ट्रक्चर है जो आपके उसने स्प्रेडर ने यहाँ पे अपना ट्विस्ट लॉक्स डालना और उसको उठा देना। रीफर ये थे आपके। अरे तो आईएमडीजी में आते होंगे सर प्रेशराइज, इनका तो स्टोरेज भी अलग रहता होगा। ये टैंक वालों का तो सर, हाँ जी, टैंक वालों का तो सर स्टोरेज भी अलग रहता होगा, मतलब आईएमडीजी के हिसाब से, या फिर? ऑफ कोर्स आईएमडीजी को वन वे स्टडी, जब हम नेक्स्ट आईएमडीजी टॉपिक पे जाएंगे तो उसकी सेग्रीगेशन, स्टोरेज, एवरीथिंग वी हैव टू टेक केयर। चाहे कंटेनर में है, चाहे बॉक्सेस में है, चाहे कार्गो कैसे भी है, मोस्ट ऑफ द आईएमडीजी टुडे इज ट्रांसपोर्टेड इन कंटेनर्स ऑन सीसीयू। CTU, ट्रांसपोर्ट यूनिट इज द बेस्ट। इट्स लाइक अ मैगजीन, तो भी पढ़ेंगे आप। एक्सप्लोसिव जैसे थे उसको कैरी करने के लिए स्पेशल मैगजीन बनाई। मैगजीन क्या होती थी? बेसिकली वुडन स्ट्रक्चर। अब दिस कंटेनर इटसेल्फ इज अ मैगजीन लाइक, इसके अंदर आप कुछ भी एक्सप्लोसिव कुछ भी आपने ले जाना है, दे आर वन वे वेरी सेफ। बट सेग्रीगेशन तो ऑफ कोर्स, सो आई एम नॉट गोइंग टू टच। जब आईएमडीजी पढ़ेंगे तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके साथ आपने देखा ये साइड ओपनिंग भी हो सकती है। एंड देन यू सी दिस, समथिंग आई वांटेड टू शो यू इज हाफ हाइट। दिस इज कॉल्ड हाफ हाइट कंटेनर्स। अब आपने किसी ने मेरे को क्वेश्चन नहीं पूछा, मेरे मन में भी आया था कि ये जो टीयर्स हम नीचे से काउंट कर रहे हैं 2 4 6 8 10 की, अरे इसका आइडिया क्या है 2 4 6 बनाने का? 1 2 3 4 क्यों नहीं लिख दिया उसको? अब होल्ड के अंदर टीयर्स हैं उनको वाई राइट 2 4 6 8, वाई नॉट राइट टीयर है कि यस 0 1 मींस ये बीच में इनको नंबर दे देंगे सर हाफ हाइट्स को। हाफ हाइट्स आ कि उस टाइम दैट वाज अ इरा, दैट वाज अ टाइम कि व्हेन दिस हाफ हाइट कंटेनर्स आर यूज्ड। व्हाई? अभी आप इमेजिन कीजिए यू आर लोडिंग स्टील,
स्टील स्लैब्स, हैवी स्टील पाइप्स। अब इस कंटेनर की तो स्ट्रेंथ है सपोज 20 टन, तो यहीं तक कि आपने स्टील प्लेट्स 1 मीटर ही अगर लोड की या आधा मीटर में ही, इसकी तो लोड डेंसिटी खत्म हो जाएगी, तो ऊपर पूरा कंटेनर खाली। फिर आपने इसके ऊपर दूसरा कंटेनर 20 फीट और 8.5 फीट वाला पूरा कंटेनर रख दिया, वो भी 1/3 ही फिल्ड अप है, 2/3 वो खाली है। तो एक तो शिप की स्टेबिलिटी, सेकंड आपकी स्पेस वेस्ट हो रही। तो उन्होंने कहा यार ये हाई कार्गो, हाई डेंसिटी कार्गो या स्टील कार्गोज के लिए हाफ हाइट क्यों ना बना दें। तो ये भी एक इरा सर ये ओपन टॉप होते हैं सर, ये हाफ हाइट क्लोज भी होते हैं। ओपन टॉप? No, अच्छा they अच्छा ठीक। close also they can be open, but now they are out of market, finished. अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा यार कंटेनर की स्ट्रेंथ इंक्रीज कर दो। 20 फीट कंटेनर कैन इजीली कैरी 30 टन लोड। उसमें मटेरियल इतना आ गया आपके पास, मटेरियल में स्ट्रेंथ इतनी आ गई। पहले 20 टन कंटेनर हार्डली 18-19 टन से ज़्यादा होता ही नहीं था उसका वेट। 20 टन से ऊपर तो आप कैरी नहीं कर सकते। आज अगर आप देखोगे 20 टन कंटेनर आई हैव सीन स्पेशली इंडिया से, from Mundra side, all the marble, granite, it's a very heavy cargo. 30 टन तक उसका वेट हो जाता है 20 फीट कंटेनर का। Once I was shocked, I say no, प्लानर को आपने गलत लिखा है इसका वेट। 20 फीट कंटेनर में 30 टन हो ही नहीं सकता। फिर क्यूरियोसिटी के लिए जाके देखा, तो हमने कहाँ से देखना है, ठीक है वेट तो उसने डिक्लेयर किया, वेट तो हमें नहीं पता, तो हमने जाके CSC प्लेट देखी कि भाई देखें इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। तो नेचुरली CSC प्लेट के ऊपर इट वाज अप्रूव्ड फॉर ग्रॉस वेट 30 टन। तो CSC का ये मतलब है, कभी आपको डाउट आ जाए कि यार ये कंटेनर के अंदर इतना सामान है, कैन दिस कंटेनर टेक सो मच वेट और नॉट, किसी को नहीं बोलना, जस्ट गो एंड सी द CSC। अगर CSC कहती है कि नहीं 20 फीट कंटेनर ओनली 25 टन और उसके अंदर 30 टन आपका प्लान में दिखा रहा है, तो आपको डाउट आना चाहिए, नो सर कुछ तो गड़बड़ है, या तो वेट ज़्यादा है या ये अगर ठीक है इट्स नॉट अलाउड, कंटेनर टूट जाएगा। जब वो अप्रूव ही 25 के लिए, हाउ कैन यू पुट 30 टन। तो यहाँ पे CSC प्लेट काम आती है, किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं। तो यू जस्ट चेक एंड देन कॉरस्पॉन्ड, ठीक है। सो दीज आर द, आजकल देखिए इवन कार कैरियर्स के लिए तो दे हैव द कंटेनर्स इस टाइप के कार अंदर उसने, एंड दे सिक्योर everyone is, because it is the shipper, it is not the shipper, the ship owner। ये कंटेनर ट्रेड है क्या आज बेसिक, आपकी फैक्ट्री है लुधियाना में, यू आर मैन्युफैक्चरिंग एनीथिंग एंड यू वांट टू सेंड इट टू LA, और यू आर रनिंग अ राइस सेलर इन अमृतसर, आपके हर हफ्ते 50 कंटेनर्स LA जाने, लॉस एंजलिस जाने। तो आप क्या करते हो, आप एजेंट को पकड़ते हो, शिपिंग एजेंट को पकड़ते हो कि यार मेरे पास ऐसे ऐसे कार्गो है, मेरे को हर हफ्ते मेरे को 50 कंटेनर चाहिए। तो दैट गाय इज मोर देन हैप्पी, बिकॉज उसको कमीशन मिलती है, 10% ऑफ द फ्रेट कमीशन मिलती है एजेंट को। तो वो क्या करेगा, वो आपको आपके प्रेमाइसिस में एवरी वीक 50 एम्प्टी कंटेनर्स ही विल अरेंज। अब वो कस्टम के थ्रू, कस्टम डिपो जहाँ भी जैसे भी है वहाँ पे अंडर कस्टम सुपरविजन वो कंटेनर स्टफ होगा। एंड देन फिर आपका शेड्यूल है, हीरो शिप बॉम्बे आएगा, जहाँ से भी उसने कांडला से जहाँ से भी शिपमेंट होनी है वहाँ से वो आपका कंटेनर स्ट्रेट वे चला जाएगा। तो इसकी जो स्टफिंग है वो भी अंडर सुपरविजन है कि भाई नाउ एवरीवन नोस कंटेनर्स क्या हैं, शिप क्या होता है, कार्गो को कैसे सिक्योर करना है। पहले था, आज नहीं, टुडे दे नो एवरीवन। समटाइम देयर सम सर्टिफाइंग अथॉरिटीज आर देयर कि हाँ भी ये कार्गो ठीक सिक्योर भी है कि नहीं, सो दैट देयर इज नो रिस्क टू द शिप और द पीपल ऑन द शिप। तो ये हर टाइप के आपके कंटेनर्स, इसका देखिए वेंटिलेशन, ये वेंटिलेटेड कंटेनर, अब ये कंटेनर्स का ये वेंटिलेशन पोर्ट है, नेचुरल वेंटिलेशन, पानी भी नहीं जा सकता, इसके डिज़ाइन ऐसा है, ठीक है। सो दीज आर योर बेसिकली ऑल द टाइप्स ऑफ कंटेनर्स, ओपन टॉप कह लें हम, हाई कह दें, टैंक कंटेनर कह लें, इवन बल्क कंटेनर्स आर देयर, कि बल्क के लिए भी खाली उसने ऊपर से जस्ट अ ओपनिंग इज देयर, एक बिग कवर की तरह, एंड यू लोड द बल्क ग्रेन, यू लोड बल्क सल्फर, कुछ भी आपने लोड करना है
So I don't think even, but it is very useful. चलो हैव अ ब्रेक, चाय पी लीजिए, उसके बाद अब हमारा कार्गो वर्क शुरू होता है, जो कि आपका फेज़ 1 का है। कि हाँ यार चलो ये तो हमने देख लिया, बेसिक्स तो देख लिए कि हाउ दिस कंटेनर्स आर, नंबरिंग, मार्किंग क्या है, सो दीज आर द वेरी बेसिक थिंग्स। अब आएगा कि यार हमने इसको जब कार्गो प्लान बनानी है तब इसकी कार्गो प्लानिंग कैसे होती है, सीक्वेंस वाइज उसको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो लेट्स सी, so what are the various points of container storage plan affecting hull strength, stability, draft, trim and heat. Now when considering acceptability of a container cargo storage plan, the following procedures guidelines concerning the hull strength, stability shall be taken into account. क्या क्या points हैं वो? सबसे पहले तो आपका आ जाएगा बच्चे ड्राफ्ट। जैसे ही आपके पास प्लान आती है तो फर्स्ट थिंग आई सी इज द ड्राफ्ट रिस्ट्रिक्शन एट द बर्थ, अप्रोचेस, पैसेज, नेक्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल, all shall be taken into consideration. And vessels maximum draft must be maintained within the applicable restriction. I don't know any of you have faced so far or not. Lot of time you keep on loading and suddenly 10 कंटेनर रह जाते हैं, then you go and see the draft and you say अरे लोड लाइन तो हो गया, she has come to the marks. अब क्या करें? आज भी ये हो रहा है। अब तो शिप भी इवन कील पे है, अब आप बैलास्ट भी कितना स्ट्रिप करोगे? इवन कील पे तो कुछ भी नहीं निकलने वाला जो 5-10 टन एक टैंक में था। सर वो सब तो कैलकुलेशन में चेक कर चुके होंगे ना अप्रूवल के टाइम पे। वैसे वही कह रहा हूँ ना, आपने अप्रूवल के टाइम में तो किया। अब ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि आई थिंक मैंने आपकी क्लास या दूसरी, कई बार मैं कंफ्यूज होता हूँ कौन सी क्लास में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि लॉट ऑफ टाइम योर लोडिकेटर का जो ड्राफ्ट है, हैव यू सीन दैट लोडिकेटर ड्राफ्ट मैचिंग योर विजुअल ड्राफ्ट? नो सर, डिफरेंस होता है। सिंपल है ना? आवरली Always have some correction. टेंशन में तो आवरली कंपैरिजन Mostly. रहता है यस, ये चीज़ देख ली है। इवन एज अ सेकंड ऑफिसर अगर आपने देख लिया तो आपके मन में आएगा हाँ यार लोडिकेटर कहने को तो है, बट जो मैं लोडिकेटर में मेरा ड्राफ्ट दिखा रहा है, बट जब मैं विजुअल लेने जाता हूँ तो फ़र्क रहता है, प्लस माइनस रहता है, कुछ भी है, आगे का कम होता है, पीछे का ज़्यादा, या आगे का ज़्यादा पीछे का कम। वो क्यों होता है? सर कंटेनर जो कार है ना वो लोड के हिसाब से नहीं किया, उसका वेट ज्यादा था एक्चुअली कंटेनर्स का, बताया गया प्लान में कम है। सर जो बैलेस्ट है वो हम 0 लिख देते हैं, वो एक्चुअली पूरा डीबैलेस्ट होता है, उसमें थोड़ा बहुत तो पानी बच ही जाता है। अभी आप और जो इमेजिन, वेट, हाँ जी, अभी आप इमेजिन कीजिए यू आर चीफ ऑफिसर। सर वो जो कांस्टेंट वैल्यू रखते हैं, कांस्टेंट जो शिप का रहता है, इट इज एक्चुअली पता नहीं होता है। यस, नोबडी बॉदर्स बिकॉज कि एक गुड चीफ ऑफिसर जैसे आप जाओगे फर्स्ट अपॉर्चुनिटी भी, ये नहीं कि ज्वाइनिंग के टाइम में, जैसे ही आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कैरी आउट द ड्राफ्ट सर्वे। एंड जैसे ही आपने ड्राफ्ट सर्वे किया तो आपको पता लग जाएगा कि आपका कांस्टेंट, आई होप ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट इज समथिंग व्हिच इज अननोन ऑन द शिप। एग्जांपल, मड इन योर बैलास्ट टैंक्स। आपने तो साउंडिंग ली, यू नो कि हाँ जी इतना बैलास्ट है, या आपने टैंक को ड्राई कर दिया कि ठीक है यार 2 सेंटीमीटर है, इट इज़ हार्डली एनी वाटर, बट उसके अंदर जो मड है, 2 बार अगर आपने रिवर्स में बैलास्ट लिया है तो योर टैंक्स गेट फिल्ड अप विद मड। इंजन रूम, फ्यूल टैंक्स, उसमें स्लज, उसका तो किसी के पास अकाउंट नहीं। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द एज ऑफ द शिप, द लॉट ऑफ कटिंग, न्यू स्टील, वेल्डिंग, ये वो स्पेयर्स, कोई लाइनर रखा हुआ आपने, कोई पिस्टन रखे हुए, कुछ रखे हुए 2-2, 5-5, 10-10 टन के, उसका तो आपने कहीं अकाउंट किया ही नहीं। प्लानर ने क्या किया? प्लानर ने तो आपका डिज़ाइन डेटा पकड़ा, डेड वेट 70,000 माइनस आरओबी, दैट इज अ फ्यूल, बैलास्ट, फ्रेश वाटर, जो भी है, बाकी का उसने कार्गो डाल दिया उसमें। एंड देन यू फाइंड अब है 10 कंटेनर बाकी थे, शिप तो लोड लाइन पे आ गया। तो ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले ऑफ कोर्स आई विल डील विद दिस, जब हम ड्राफ्ट सर्वे के क्वेश्चंस करेंगे तो उस वक्त आप इसको हम देखेंगे कि कांस्टेंट क्या चीज़ होती है। तो ये चीज़ सबसे पहले हमने देखनी, ड्राफ्ट रिस्ट्रिक्शन। नो केस shall the midship draft exceed the load line. Requirements of vessel loading, manual, I mean draft, trim, everything is complied with. Sometime you have a restriction, forward draft जो है उसकी अगर लोडिंग मैनुअल में कुछ रिस्ट्रिक्शन है, प्लीज गो थ्रू दैट। ये नहीं कि लोडिकेटर के ऊपर बैठ, लोडिकेटर से बच्चे कंप्यूटर इट्स लाइक अ कैलकुलेटर, ठीक है, उसके अंदर डेटा दिया हुआ है, बट ये चीज़ें हमने सारी डेटा अपने शिप के पर्टिकुलर शिप की प्लान्स, मैनुअल, वहाँ से देखना है।
वेसल पासिंग थ्रू पनामा कनाल, अनदर कनाल जहाँ पे डेंसिटी चेंज होने वाली है कि यार कहीं एक्सीड तो नहीं होगा मेरा ड्राफ्ट, वाइज एटनरी यू नो। हाँ जी बोलिए। सर एक डाउट था सर, ये सर स्टेबिलिटी में सर मतलब ये पढ़ाया था कि ना जब जहाज का जो वो होता है ना डिस्प्लेसमेंट, अगर 2% से अगर ज़्यादा अगर एक्सीड अगर होता है तो दोबारा से अपन उसका वो निकालते हैं, क्या बोलते हैं, केजी निकालते हैं दोबारा से। अगर 2% से एक्सीड मतलब हो जाए, अगर चेंजेस आ जाए तो वो उसी के बारे में अपन अभी मतलब बात कर रहे थे ना, जो ड्राफ्ट सर्वे वाला काम वही है ना। बच्चे देखिए डिस्प्लेसमेंट तो आप 1 टन भी एक्सीड नहीं कर सकते। इफ आई हैव टू लोड टू द समर लोड लाइन, समर लोड लाइन में दोनों लाइट चाहिए। शिप का, लाइट शिप समर का, लोड लाइन में हाँ लाइट शिप का अगेन कि यस लाइट शिप जो है कि जब शिप बना था तब ठीक है, बट लाइट शिप में अगेन चेंजेस हो रही हैं। हाँ 4 ड्राई डॉक हो गए तो कुछ ना कुछ कटिंग वेल्डिंग न्यू हुई होगी, यस कम सर। ज़्यादा हुआ होगा। प्लस तो ये सारी चीज़ें जो अननोन चीज़ें हैं, अब मैंने तो उसकी लाइट शिप ले ली कि 5000 टन्स एग्जाम्पल के तौर पे, बट ये चीज़ें सारी आपको ड्राफ्ट सर्वे से मिलेंगी। जब आप ड्राफ्ट सर्वे करोगे आपने सारे नोन वेट्स आपके पास हैं, एंड नॉर्मली यू कैरी आउट व्हेन द शिप इज एम्प्टी। बल्क कैरियर्स में तो कॉमन है, वहाँ तो हम एक्चुअली ड्राफ्ट सर्वे से ही कार्गो कैलकुलेशन करते हैं, बट इवन एनी अदर शिप यू कैन डू व्हेन द शिप इज एम्प्टी। आपके पास कार्गो ज़ीरो हो गया, यू नो आपने सारे टैंक्स फुल बैलास्ट पे हैं, आपने बैलास्ट की भी आपके पास इजी कैलकुलेशन है, फ्यूल आपके पास है, फ्रेश वाटर, सारी चीज़ें आपके पास है। अब जो आपकी डिस्प्लेसमेंट आएगी नेचुरली वो थोड़ी सी ज़्यादा आएगी एज पर द, तो आपको पता लग गया कि यार कहीं ना कहीं 200-300 टन जो है एक्स्ट्रा है। फिर आप उसको लोडिकेटर में एडजस्ट करते हो कि हाँ यार, सो आई यूज टू कीप अ बुक नॉर्मली। चीफ ऑफिसर जैसे जैसे आप ऑफकोर्स चीफ ऑफिसर चेयर पे बैठोगे तो यू कीप अ छोटी सी एक एक्सरसाइज बुक रखते हो, कॉपी रखते हो, जिस पे आप लिखते जाते हो कि यार लोडिकेटर ड्राफ्ट इतना है, फिजियो ड्राफ्ट इतना था, फिर आपने उसको एडजस्ट किया कि हाँ यार ठीक हुआ या चेंजेस हुई, कुछ भी हुई, तो उससे आपके पास एक आपका रेडी रेकनर बन जाता है कि हाँ ये नहीं कि ज्वाइन किया चीफ ऑफिसर टेल जो आउट गोइंग चीफ ऑफिसर अभी फॉरवर्ड ड्राफ्ट में 5 सेंटीमीटर ऐड कर लेना, पीछे वाले में माइनस कर लेना, ऐसा नहीं। ओके सर। तो ये चीज़ें आपने थोड़ी ध्यान से रखनी है, एंड इट्स अ वेरी ओपन बुक, इसमें कुछ छुपाने की चीज़ नहीं है। आपने जो कैलकुलेशन की है डिस्कस विद कैप्टन के साथ, ये चीज़ मैंने देखी है, ये मैंने किया, मैंने ये ड्राफ्ट सर्वे किया, मेरे पास ये फिगर आ रही है, एंड ये मैंने ऐसे एडजस्ट किया, एंड देन यू टेल, बिकॉज सम टाइम इवन द प्लानर्स मे नॉट हैव सेल्ड, हु इज नॉट अ सी फेरर, उसको तो कहेगा यार कांस्टेंट ये क्या चीज़ है, समझ ही नहीं आएगा उसको। तो आपका एक रिलेशन बनाना पड़ता है एज अ चीफ ऑफिसर, यू हैव टू हैव अ एक लेजन विद द प्लानर एंड चीफ ऑफिसर, बिकॉज यू आर द बॉस। कार्गो में कैप्टन विल नॉट पार्टिसिपेट, तो आपको उसको बताना है कि ये हर चीज़ है, वी विल सी क्या क्या चीज़ें आपने उसको, आपने ये इन्फॉर्मेशन दे दी। जब प्लानर एंड चीफ ऑफिसर दे वर्क इन गुड, जिसे कहते हैं एक अच्छा टाई अप है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी शिप। Vessels trim must always be maintained within reasonable limits so as not to adversely affect the cargo operations। अब ट्रिम में भी है कि चाहे लोडिंग एंड डिस्चार्जिंग में भी आप देख लीजिए, अगर आपने एक्सेसिव ट्रिम ली 2-2.5 मीटर 3 मीटर लिया, अब आपके पास तो सेल गाइड्स है, कंटेनर तो वर्टिकली नीचे आएगा, अब नीचे आपने जहाज को जो है ट्रिम किया हुआ, दैट मीन्स आपकी सेल गाइड स्टेडी होगी और कंटेनर फिट ही नहीं होगा, या सेल गाइड डैमेज होगी या कंटेनर डैमेज होगा। सेम वेज विद द लिस्ट, तो इसीलिए इसके ऊपर हमारे पास एंटी हीलिंग टैंक्स लिए, सो दैट आप विद इन 1 डिग्री ओके ठीक है, बट 1 डिग्री से ज़्यादा अगर लिस्ट होती है 2-3 डिग्री, अगेन गैंट्री को प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये चीज़ें भी देखनी है। प्लस आपने देखना है कि ऑन कंप्लीशन शिप की ट्रिम कंडीशन क्या, ट्रिम इज इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द विजिबिलिटी ऑल्सो, स्लाइट चेंज इन द वेसल्स ट्रिम में ब्रिंग विजिबिलिटी विद इन कंप्लायंस, and besides obvious adverse or excessive trim will also affect the vessel speed consumption। so ये सारी चीज़ें भी हम उसको देखेंगे, ड्राफ्ट ट्रिम लिस्ट क्या हो रहा है, and storage plan must be checked to confirm vessels heal at the end of cargo operations। आपके पास एंटी हीलिंग टैंक्स हैं बट आपने पूरा पानी एक तरफ ट्रांसफर कर दिया, स्टिल यू हैव 1 डिग्री लिस्ट, तो क्या करोगे, अब लास्ट मिनट में हम कहाँ से कार्गो शिफ्ट कराएंगे। so this value of heal must be such it can be corrected using vessels healing tanks or additional ballast tanks if required। अब फुल लोड पे जा रहा हूँ, बैलास्ट भी नहीं ले सकता, कई बार आपको हीलिंग टैंक्स का पानी भी पंप आउट करना पड़ता है। कार्गो है यार, मनी शिप इज रनिंग फॉर कार्गो, बैलास्ट के थोड़ा फ्रेट मिलेगा।
as long as the stability is not affected. And in case vessel cannot be kept upright in final condition, terminal central planner to be informed that cargo stowage plan appropriately modified. तो ये 3-4 चीजें regarding draft. Try avoiding loading these isolated stacks of containers when stored on deck, especially for the ship side. कि प्लानर तो बढ़ता चला जाएगा, आपने देखना कि यार ये तो नहीं कहीं 6i का एक टावर जैसा बना के रख दिया, उसके इस तरफ भी कंटेनर नहीं है और एक्सट्रीम साइड पे रख दिया, विच इज नॉट गुड. Avoid loading high cube containers on first and second tier on deck stowage. आपका lashing material, आपकी जो lashing rods हैं, they may be only for 8 feet 6 inches. आपने 2 high cube लगा दिए first 2 tiers पे, तो 2 feet आपकी rod छोटी हो जाएगी. अब पुराने शिप थे सर, ये शिप साइड वाला पॉइंट क्या था सर, वो बताना. शिप साइड का बच्चे देखो, आप जब शिप साइड पे लोड कर रहे हो तो एक्सट्रीम के जो बेस हैं, एक्सट्रीम की जो आपकी रोज हैं, अगर उसमें मैं एक आइसोलेटेड स्टैक बना देता हूँ कि एक ही कंटेनर, इस तरह भी कोई कंटेनर नहीं है, इस तरह भी कोई कंटेनर नहीं, सो ये जो 6 हाई कंटेनर है, नेचुरली व्हेन द शिप रोल्स, तो थोड़ा सा उसमें डेंजर है कि यस दे कैन फॉल, दे कैन डू एनीथिंग कैन हैपन. सो इसलिए हम कहते हैं कि साइड वाला खाली है तो वाई लोड 6 हाई, उसको थोड़ा नीचे रख दो अगर स्पेस है. तो स्पेस नहीं है फिर तो डेंजर ही नहीं है, फिर तो पूरा का पूरा ब्लॉक बन जाता है. दिस इज व्हाट दे से आइसोलेटेड स्टैक्स. जो है स्टैक क्या होता है, बेसिकली अ टियर. आपने 6 कंटेनर एक के ऊपर डाल के, दिस होल टियर इज नोन एज अ स्टैक. प्रॉपर सिक्योरिंग होगी, क्या प्रॉब्लम होगी सर उसमें? वो तो ठीक है सर, अगर ऐसे कर सकते हैं इवनली लोड. यस, स्टिल अगर मेरे पास स्पेस है, मैं क्यों एक वॉल चढ़ा के रखूं? अच्छा ठीक है सर. टावर अवॉइड करते हैं. टावर क्यों बना के रखें? अवॉइड. ठीक है सर. इजंट इट? अगर मेरे पास ठीक है स्पेस नहीं है तब बात अलग है, तब तो डेंजर भी नहीं है. तो ये चीज़ आपने प्लान से थोड़ी देखनी, आप उसको चेंज कर सकते हो, अपने आप भी चेंज कर सकते हो. तो इंटीमेट था क्या यार, मैंने उसको नीचे रख दिया. पोर्ट रोटेशन, दैट इज़ वेरी सिंपल कि यस फर्स्ट पोर्ट का कार्गो ऊपर होना चाहिए. ये नहीं है कि बाई चांस कुछ हुआ, फर्स्ट पोर्ट का कार्गो नीचे चला गया तो शिफ्टिंग आ जाएगी. शिफ्टिंग कॉस्ट मनी, आपकी तरफ से शिफ्टिंग नहीं होनी चाहिए. फिर वो 3600 क्वेश्चन फ्लाई ओवर करते हैं. प्लानर अगर करता है, समटाइम प्लानर्स डू इट, व्हाई? बिकॉज दे हैव टू प्लीज द शिपर. समटाइम लास्ट मिनट में शिपर का कार्गो आता है, हु इज अ वेरी रेगुलर शिपर टू दैट कंपनी. अब उसको लूज नहीं करना चाहते, उसके पास भी कुछ डिले हो सकता है. हो सकता है उसके जो 10 कंटेनर्स हैं वो थोड़ा चाहे ट्रैफिक में फंस गए हैं, चाहे कुछ भी है, ये गिव्स यू लास्ट मिनट. आपने प्लान बना दी, फिर प्लानर कहेगा कोई बात नहीं, ठीक है हमारे पास स्पेस है, मैं इस कंटेनर को ऊपर रख लेता हूँ, बट दे आर नॉट फॉर द फर्स्ट पोर्ट, नेक्स्ट पोर्ट में ही विल प्लान फॉर द शिफ्टिंग. तो आपने उसको मैसेज में ये दे देना कि दीज सो मेनी नंबर ऑफ कंटेनर्स बेसिकली विल रिक्वायर शिफ्टिंग इन नेक्स्ट पोर्ट, देन ही विल कंफर्म कि ओके ही नोस. Flexibility, of course, vessel should be able to discharge at a port and load containers. तो ये तो ट्रेड ही ऐसा, ships are designed like that कि loading discharging container ship is never empty. Type of containers, special attention precautions for reefers, IMDG, OOG, out of gauge containers and containers having pilferable cargo. बाकी containers में तुम्हें पता ही नहीं क्या होता है, बट इनमें आपको जरूर पता होगा कि रीफर में क्या रीफर जा रहा है, IMDG कौन सी क्लास है, OOG कौन से हैं, एंड अगर कोई हाई वैल्यू कार्गो है, करेंसी नोट्स जा रहे हैं या और कुछ भी है जिसकी इंफॉर्मेशन है, उन कंटेनर्स को मैं स्पेशली आई विल पे अटेंशन कि हाँ यार उनको कैसे लोड करना है. जैसे आपने कहा कि रीफर्स का एक सेपरेट टॉपिक है इसी के साथ ही कि व्हेन वी स्टार्ट लोडिंग रीफर्स, तो रीफर्स की प्रिकॉशन तो बिल्कुल अलग है, बिकॉज अगेन हाई फ्रेट कार्गो, 2 डिग्री टेम्परेचर. ओजी टॉप पे ही लोड होते होंगे सर, है ना? यस यस. OG है कि कई बार ठीक है, जैसे मशीनरी है आपकी, हम अंडर डेक भी कर सकते हैं, उसके ऊपर एक स्लॉट खाली छोड़ देंगे, इजंट इट? उसके ऊपर एक कंटेनर नहीं लोड होगा, सो यू आर सैक्रिफाइसिंग अ बेसिकली अ स्लॉट. तो उसका फ्रेट में एडजस्ट हो जाएगा. तो जो फ्रेट वाले हैं, जो कमर्शियल पीपल हैं, दे विल से कि हाँ भी आपका OG है, अगर हमने लोड करना है तो हमें आपके इसके ऊपर का स्लॉट खाली छोड़ना पड़ता है, उसके पैसे भी तुम ही दो. So that is there, but हमने जहाँ तक कार्गो को लेके जाना है, it can be under deck also, it can be on deck also, but definitely it will be on top. And आपने जैसे हाई क्यूब का ठीक कहा था, हाई क्यूब की प्लान भी sometime, now I am not talking to you as second officer, I am talking to you as chief officer. Sometime that mistake can be made. आपने शिप ज्वाइन किया
आपके पास हाई क्यूब की प्लान ही नहीं है कि कौन से होल्ड में कितने हाई क्यूब लोड किए जा सकते हैं। एंड प्लानर को तो वैसे ही नहीं पता होगा। अब एग्जांपल, नॉर्मली आपकी शिप्स की प्लान में होता है, अगर आपकी शिप्स की प्लान देखेंगे तो उसमें रहता है 1 हाई क्यूब, 2 हाई क्यूब्स अलग होल्ड में है, उतनी क्लियरेंस वो देते हैं, बट उसने 3 हाई क्यूब लोड कर दिए। तो मेरे साथ भी हुआ है, सडनली सेकंड ऑफिसर वाज इंटेलिजेंट, उसने देखा जैसे वो कवर रख रहा था, उसका ना बाबू ना, प्लीज टेक इट बैक। अब वो पुराने शिप्स थे, हमारे टाइम में तो ऐसे कैसे सेलुलर नहीं थे, बट शिप्स वो ओल्ड कन्वर्टेड टाइप थे शुरू में। तो इसकी भी नॉर्मली एज अ चिवोसर वी मेक अ प्लान कि भाई नंबर 1 होल्ड कैन टेक 1 हाई क्यूब और 2 हाई क्यूब। नाउ इट कैन टेक मोर हाई क्यूब्स बट यू हैव टू सैक्रिफाइस। सपोज मेरा जो अंडर डेक है, होल्ड है, इट कैन टेक 8 हाई कंटेनर्स। 8 हाई में वो 1 हाई क्यूब ले सकता है या 2 हाई क्यूब ले सकता है। अब मैंने उस 8 टीयर्स में, जहाँ उसने लिखा है कि 2 हाई क्यूब ले सकता है, मैंने 3 डाल दिए, तो 1 फुट कंटेनर ऊपर आ गया, हैच कवर बंद ही नहीं होगा। उस वक्त आपने उसको एडवाइस करना, तो प्लानर क्या करेगा, प्लानर 8 हाई की बजाय 7 हाई लोड करेगा, 3 हाई क्यूब डाल देगा, 4 हाई क्यूब डाल देगा, तो एक टीयर सेक्रीफाइस हो गया। तो इस चीज़ का ध्यान रखना भी आपको ज़रूरी होता है प्लान में। अब आ गया आपका वेरी नॉर्मल टेक्निकल, एवरी शिप इज सेम, शेयरिंग फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, टॉर्शनल मोमेंट्स, तो ये चीज़ भी हमने देखनी है। सो दीज 3 predominant type of hull stresses affect the container ships and vary due to changes in the distribution of weights on board. Unequal distribution सर of ये weights. हाँ जी, सर ये डाउट है सर, अभी हमने भी कैलकुलेट किया होगा, जैसे प्लान पहले बनाया होगा, वही अप्रूव, उसका शिप प्लानर का प्लान लेके वो सारा अप्रूव हुआ है, तो फिर उसके पास भी सर उसको भी पता है कि कितना लोड करना है कितना नहीं करना है, के पास भी इंफॉर्मेशन है, फिर वो ज़्यादा कैसे लोड करेगा मतलब। यही चीज़ होती है कि कई बार प्लानर भी वहाँ पे चेंज होते रहते हैं। तो अच्छा जो प्लानर हो, एक्सपीरियंस प्लानर होगा, ये कि प्लानर नहीं रहता, प्लानर्स भी चेंज होते हैं। आई यूज्ड टू हैव लॉट ऑफ टाइम, एग्जांपल द शिप गोज टू फेलिक्सटो। फेलिक्सटो का मैंने देखा कई बार प्लानर आ जाते थे, शिप पे आते थे। आजकल लेकिन तो प्लान तो एक ही फॉलो होगा ना लोडिंग के लिए, उस पर्टिकुलर लोडिंग के लिए। अच्छा, बट डेटा भी तो होना चाहिए ना उसके पास, जैसे आपके टैंक्स में कितना बैलास्ट है, कितना फ्यूल है, वो तो हमने ही अपडेट करना है। अब ये चीज़ें शिप से ही जाती हैं उसको डेटा, कि आप उसको एक प्लान बना के भेज सकते हो, चाहे आप एक प्लेन पेपर पे प्लान बना के भेज दीजिए कि ओके नंबर 1 बे, जितनी भी बे वाइज हैं कि अंडर डेक ओनली 1 2 3 4 कितने हाई क्यूब्स कैन बी लोडेड। सिमिलरली इवन फॉर द रीफर सॉकेट्स, उसकी प्लान भी मैं भेजता था कि रीफर जी सर, मैं वही बोल रहा हूँ कि हम भी भेजते हैं, वो भी भेजता है, फिर बाद में अप्रूव होता है प्लान, फाइनली एग्री होता है ना कि हम ऐसे ही लोड करेंगे। करेक्ट। तो अगर बाई चांस तो उसने, उसी हाँ जी गो हेड। वही सर कि फिर उसे भी पता होगा, प्लान उसके पास भी होगा, फिर वो उतना ही लोड करेगा, फिर अच्छा, वो एक्स्ट्रा कैसे मतलब। कई बार ओवरसाइट हो जाती है, कई बार वो कंटेनर लोड कर रहा है तो करते करते उसने अच्छा 3 डाल देगा, उसने ओवरसाइट हुई, तो अगेन दैट्स वाई मेरे से ओवरसाइट नहीं होनी चाहिए ना, अच्छा ओके, रीजन हम इट। प्लान चेक कर लेंगे सर। प्लान मैं इसीलिए चेक करता हूँ, ये नहीं कि मैं ब्लाइंडली उसको बिलीव कर लूँगा कि ठीक है मैंने उसमें डाला, मैंने स्टैक वेट चेक किया, मैंने अपना स्टेबिलिटी चेक की, मैंने ड्राफ्ट चेक किया, मैंने सब कुछ किया, एंड देन आई कम टू द इवन पोर्ट रोटेशन की, हाँ यार कहीं ओवर स्टोर तो नहीं हो रहा कार्गो, कहीं फर्स्ट पोर्ट का कार्गो नीचे तो नहीं चला गया, कहीं ज़्यादा हाई क्यूब तो नहीं आ गए। वैसे तो ऑफ कोर्स दोस गाइस आर देयर, ठीक है, बट दे आर आल्सो ओवर बिजी, 7 शिप उसने प्लान करने हैं, तो हो सकता है कि आई डोंट थिंक, इट्स नॉट आई एम नॉट ट्रस्टिंग, बट एनीबडी कैन मेक अ मिस्टेक, आई कैन आल्सो मेक अ मिस्टेक। डबल ट्रिपल चेक जो है उससे वो आपकी तरफ से भी आ जाएगा। ये नहीं है कि उसने कर दिया, मेरे माइंड से भी स्लिप हुआ, एंड फाइनली जब लोडिंग में आए तो हैच कवर बंद नहीं हो रहा, फिर बिग हंगामा। प्लानर तो को भी सर वो तो आप सेकंड ऑफिसर वाली बात बता रहे थे आप, तो उसने मतलब प्लान में देखा सर फिर। नो प्लान में तो बताया ना, उस टाइम तो प्लान इतनी थी, जब लोडिंग करके ठीक है उसने लोड भी कर दिया, फिर वो हैच कवर रखने को आया तो फॉर्मिंग से उसने तब तक देखा नहीं था कि, तो जब हैच कवर रखने आया तब उसको नेचुरली ही वाज स्टैंडिंग देयर, देखा उसने, अरे तो हैच कवर टच कर रहा है, उसने कहा ना बाबू हैच कवर मत रखिए।
ठीक टाइम पे कर लिया ना, अदरवाइज तो कंटेनर डैमेज होना था। फिर कोई बात नहीं, निकालिए, थोड़े क्वेश्चन तो आते हैं, चलो एटलीस्ट कुछ डैमेज तो नहीं हुआ ना, हेल्थ कवर डैमेज नहीं हुआ, कंटेनर डैमेज नहीं हुआ, कि ठीक है ओवर साइट हुई, नहीं दिखा, ये हुआ। तो आजकल तो ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी हाई है, आजकल सारे प्रोग्राम बने हैं, हो सकता है वो आपको अलार्म भी दे दे, जैसे आपने प्लान में डाला हाई क्यू का चेक किया, हो सकता है आपको दिखा दे कि यार एक्स्ट्रा हाई क्यू आ रहा है या कुछ हो रहा है, तो उसका भी हमने ध्यान रखना है। अब आपकी आगे सर अगर मान लो जो प्लान फाइनलाइज हो चुका है, अगर सर अपन जब ड्यूरिंग द एक्चुअल मतलब कार्गो ऑपरेशन कुछ अगर सर ऐसी मतलब प्रॉब्लम आती है हाई क्यूब वाली, तो बाद में मतलब कुछ चेंज मतलब कर सकते हैं ना प्लान में? कर सकते हैं बच्चे, कर सकते हैं, कुछ नहीं होता। फिर आप पता है क्या होता है, देखो आपके पास प्लानिंग आ गई, प्लानर बैठा हुआ जिनेवा में, हाँ जी, आप लोड आप बॉम्बे कर रहे हो, इजंट इट? अब आपने प्लानर ने टर्मिनल प्लानर को भी प्लान भेजी है, तो टर्मिनल प्लानर भी क्या करेगा, सबसे पहले जैसे शिप बर्थ होता है तो टर्मिनल प्लानर कम्स टू यू, तो उसने भी हो सकता है कोई चेंजेस किए, हो सकता है उसको कोई पर्टिकुलर कंटेनर है मिल ही नहीं रहा हो, वो भी सर जैसे टैंकर पे लोडिंग मास्टर होता है, वहाँ पे टर्मिनल प्लानर होता है। करेक्ट करेक्ट, वेरी राइट। सो टर्मिनल प्लानर आपसे आके डिस्कस करेगा भी ये प्लान है, हो सकता है उसमें भी कोई माइनर चेंजेस हों। आजकल तो फास्ट है, अगर टर्मिनल प्लानर के पास भी देर आर ह्यूज कंप्यूटर्स, उनका भी अगर आपको कभी चांस मिले, खैर मेरे को तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, हमें तो गंदी आदत थी, कहीं भी घुस जाते थे, चल यार देख के आए इनका ऑफिस कैसा दिखता है, इनका सिस्टम कैसा है, तो वैसे भी अट्रैक्टिव दिखता था। आई रिमेंबर एंटवर्प रॉटरडैम जाओ तो उनके जो प्लानिंग के जो ऑफिस हैं, दे लुक लाइक अ बड़ी एरोप्लेन की कॉकपिट की तरह, तो एजेंट को पकड़ के चल पड़ते थे कि देखो यार जरा दिखाओ वैसे, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, वैसे तो अलाउड नहीं है बट देखने में क्या होता है, फिर सिस्टम समझ आता था, अच्छा यार ये कैसे काम करते हैं, क्या इट्स बेसिकली सी, अगर आपको पता है ना, जितनी मैंने ब्रीफ इंफॉर्मेशन दी है, नाउ यू नो हाउ द प्लानर्स वर्क, अब आप उसके साथ इजी कोऑर्डिनेशन सेटअप कर सकते हैं, आप उसको सारा डेटा भेजते हो, टैंक इंटू डिस्ट्रीब्यूशन भेजते हो, चाहे उसके पास है, ही विल फील वेरी हैप्पी दैट चीफ ऑफिसर इज टेकिंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, वो सारी बात आपकी शिप ओनर तक जाएगी, वो सारे मैसेज जाएंगे, शिप इज कीपिंग द प्लानर वेल इन्फॉर्म्ड ऑफ एवरीथिंग। नए शिप्स में तो चलो सब डेटा होता है, पुराने शिप का काफ़ी डेटा जो है प्लानर्स के पास नहीं होता, सो दे फील वेरी हैप्पी, दे विल टेल यू, गोरो में एक बात है, दे विल टेल यू थैंक्स 10 टाइम्स, एंड आपको भी काम करना अच्छा लगेगा। लास्ट मिनट में कुछ होता भी है, आजकल तो मोबाइल है, फ़ोन है, आप फ़ोन उठाइए कि यार ऐसे ऐसे हो गया, आई एम चेंजिंग दिस। अब जैसे आपने कहा है पोर्ट में, यस इन केस यू फील समथिंग इज हैपनिंग, यू कॉल द टर्मिनल प्लानर कि ओके भी देयर इज अ स्लाइट चेंज बिकॉज दिस थिंग इज हैपनिंग, ये कंटेनर यहाँ की बजाय यहाँ डाल देंगे। सेम थिंग जैसे ही प्लान फाइनलाइज होगी, फाइनल जो आपने लोड किया उसकी कॉपी सेंट्रल प्लानर को जाने वाली है, तो फिर वहाँ से अगेन प्लान बनाता रहेगा। आइडिया इज कहीं पे मनी लॉस नहीं होना चाहिए, डैमेज नहीं होनी चाहिए, दैट्स द होल आइडिया। ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना, सब चीज़ को कंट्रोल्ड वे में फॉलो करना। अब आ गया आपका यस, जैसे हमने देखा कि ये स्ट्रेसेस आप देखोगे, शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, टॉर्शनल। अब टॉर्शनल स्ट्रेसेस जो हैं इन शिप्स पे ज़्यादा होते हैं, ऑल्दो द शिप में बी अपराइट ओवरऑल, yet some bays may be excessively loaded on the port side and others may be loaded on the starboard side. For example, नंबर 2 होल्ड आपने पोर्ट साइड की बेस फुल कर दी, एंड उसको कंपनसेट करने के लिए नंबर 5 होल्ड में स्टारबोर्ड साइड की बे फिल कर दी, तो हुआ क्या, ship is getting actually a buckling effect, isn't it? So torsional stresses which tend to twist the ship along the center line. अब आपको तो अपराइट दिखेगा बट एक्चुअली द शिप इज अंडरगोइंग अ स्ट्रेस। At sea, these forces increase due to the effect of sea and swell. अब उसकी भी उस बिल्डर ने जो बनाया है उसने उसका आपको लिमिट दे दी है, जैसे आपकी शेयरिंग फोर्स, बेंडिंग मोमेंट अभी 100% से ज़्यादा नहीं एक्सीड, दैट इज द लिमिट, उससे एक्सीड किया तो डेंजर। So such final stability condition, excessive heel corrected by ballast water redistribution will likely result in torsional stresses exceeding the limit. अब कार्गो तो ऐसे ही लोड होता है, कई बार होती है पोर्ट साइड की बेस फुल होती है, स्टारबोर्ड साइड खाली कर देते हैं, और उसको कंपनसेट करने के लिए हम दूसरी तरह से करते हैं। सो इन शिप्स पे ये जो टॉर्शनल स्ट्रेसेस हैं थोड़े से ज़्यादा होते हैं, बिकॉज ट्रेड ही ऐसा है, ये शिप इज़ बिल्ड एज पर द ट्रेड, कि भाई ये कार्गो तो ऐसा ही चलेगा,
कई बार स्टार्बोर्ड साइड नंबर 2 में खाली होगी, कई बार पोर्ट साइड नंबर 4 में खाली होगी, तो उसको एडजस्ट करने के लिए अगर आप देखिए शिप की जो स्ट्रेंथ है वो ऐसे बनाई जाती है। अब मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग, आपके पास एक फॉरवर्ड आफ्ट से फॉरवर्ड जाने के लिए एक पैसेज है जिसे हम अंडर डेक पैसेज कहते हैं। कंटेनर शिप्स पे गए होंगे आप भी। यस सर, अंडरडेक पैसेज होते हैं Yes, sir. दोनों साइड, पोर्ट स्टारबोर्ड। यस सर। पोर्ट स्टारबोर्ड होता है, वो तो हमारी टर्म है। तो एक्चुअली क्या है कि अगर आप अंडर डेक पैसेज में जाओगे नेक्स्ट टाइम, तो देखना वहाँ पे क्या है, देयर आर थिक वेब बीम्स। आपके फ्रेम्स हैं, वेब फ्रेम्स आर वेल्डेड। हर 4 फ्रेम के बाद एक थिक वेब फ्रेम विल बी वेल्डेड। तो ये जो अंडर डेक पैसेज है, बेसिकली दिस इज अ टॉर्शन गर्डर। ये सारी टॉर्शन को लेता है। अगर आपकी देखिए डबल स्किन बनाई है उसने, प्लस यहाँ पे उसने एक्स्ट्रा स्टिफनिंग दे दी हुई। तो ये जो आपका टॉर्शन गर्डर है या टॉर्शन बॉक्स जिसे कहते हैं, बॉक्स टाइप आपको दिखता है, अंडर डेक पैसेज बेसिकली बॉक्स टाइप दिखता है। अब इसमें आप चीफ ऑफिसर हो, व्हेन यू गो एंड ऑल द टाइम देखना कंपनी कैप्टन सब उसको कहेंगे अंडर डेक पैसेज साफ होना चाहिए। एंड हम भी करते हैं, उसको साफ करा के पेंट करके रख देंगे। वहाँ पे आपको सबसे पहले टॉर्शन का इफेक्ट दिखता है। अगर आपने हमेशा उसको लाइट पेंट से करके रखिए, आपके जितने फ्रेम्स हैं उसको हमेशा लाइट ग्रे पेंट करके रखिए। एक्सेसिव टॉर्शन होगा तो सबसे पहला क्रैक वो वेब फ्रेम पे डेवलप होगा, जब वेब फ्रेम की अटैचमेंट है टू द डेक। एंड वो क्रैक जैसे डेवलप हुआ वहाँ पे रस्ट आनी शुरू हो जाएगी। अब बोसन तो कहेगा सर हाँ मैं टचअप कर दिया, मैंने उसको ग्राइंडर पकड़ा, उसने ग्राइंडर मारा और कर दिया, विदाउट रियलाइजिंग कि यार ये रस्ट यहाँ पे आई क्यों, इसकी ज्वाइनिंग में, ज्वाइंटिंग पे, जहाँ पे आपका वेब फ्रेम डेक से ज्वाइन कर रहा है। एक्चुअली वहाँ पे क्रैक डेवलप हुआ अंदर, ये नहीं कि आपके करके हुआ, पिछली लोडिंग्स कैसी हुई होंगी। तो दिस गिव्स यू अ गुड आइडिया। जब आप इंस्पेक्शन पे जाओगे, नॉर्मली ऑफ कोर्स एज अ चीफ ऑफिसर, so you are the repair manager also, but masters जो कंटेनर शिप्स के मास्टर हैं, they will definitely have this thing in their mind and देखते हैं कि हाँ यार सब कुछ ठीक है। otherwise you always show to the superintendent for the coming dry dock, ताकि हम उसकी रिपेयर करें, हम शिप को अपना ठीक ठाक गुड कंडीशन में रखें। isn't it? that's the whole idea। 20 साल 25 साल उसने चलना है, कुछ नहीं होगा उसको। तो ये चीज़ें आपने ख्याल रखनी है, व्हाट वी कॉल द टॉर्शनल स्ट्रेसेस। तो ये कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दिस टॉर्शनल स्ट्रेसेस, शेयरिंग फोर्स, बेंडिंग मोमेंट। या बेंडिंग में तो ये तो नॉर्मल है, टॉर्शनल इन शिप्स के लिए एक्सेसिव है। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज टॉर्शनल स्ट्रेस। उसकी लिमिट देखेंगे, उसको हमेशा कम रखेंगे। इंफॉर्मेशन ऑन मैक्सिमम अलाउबल स्ट्रेसेस एट डिजाइन फ्रेम्स ऑफ द वेसल इज प्रोवाइडेड इन द वेसल्स लोडिंग मैनुअल एंड दीज मैक्सिमम वैल्यूज मस्ट नेवर बी एक्सीडेड। Stresses are usually expressed in terms of percentage, 100% being the ceiling limit। मेरी टेंडेंसी होनी चाहिए जितना मैं उसको कम से कम रख सकूं। जितना ज़्यादा लोड होगा प्रॉब्लम नहीं आती, स्ट्रेसेस वैसे इवन आउट हो जाते हैं। जितना कम लोड होगा तब प्रॉब्लम आती है। वी आर कैरिंग ओनली फ्यू कंटेनर, इसलिए जो बिगर शिप्स हैं फुल लोड पे तो बहुत अच्छे लगते हैं, जब कम लोड आएगा तब आपके स्ट्रेसेस एक्सीड करने शुरू करते हैं। तो इस पर भी हम ध्यान रखेंगे। especially applicable to container vessel having large to breadth length to breadth ratio. So such ships are prone to stress cracks in the hull structure, and if this does not result in bringing the stresses within the requirement, terminal planner, central planner, आपको लगता है कि यहाँ torsion stresses नहीं आ रहे, change कार्गो कंटेनर शिफ्ट करने हैं, हैवी वेट वाले उठा के दूसरी तरफ लाइट वेट वाले इधर डाल दीजिए। अब इसके साथ होता है स्फीयर विंड एंड रोलिंग इफेक्ट है, hull strength and stability of container ship। अब ये भी अगर आपके लोडिंग मैनुअल में दिया है, purpose of this sphere, wind and rolling criteria is to evaluate the vessel's ability to survive the sphere, beam, seas and wind। In such a situation may be assumed to occur should the vessel lose steering or propulsive capability in a storm। तो ये भी डिजाइनर जो है, डिजाइनर मेक्स द शिप, ही इज अ वेरी जीनियस पर्सन। इतना आपने लोड लिया है, अगर बाई चांस स्ट्रॉन्ग विंड मिलती है और इंजन फेल होता है, तो ये तो नहीं है कि शिप वापस ही नहीं आ सकेगा। If the vessel can roll freely back to leeward under the combination of all these forces without rolling past its range of positive stability or taking on water through
passes the requirement. So अगर ये भी है इसको भी चेक कीजिए whether she is passing the sphere wind rolling effect or not. Most cargo stowaway stability calculation software provide alarms, highlights for the stability condition not complying. तो ये भी हम चेक करेंगे. अब स्टैक वेट आ गया. स्टैक वेट्स एंड स्टैक वेट डिस्ट्रीब्यूशन. स्टैक वेट क्या है? स्टैक वेट इज द मैक्सिमम वेट दैट कैन बी borne by deck, hatch covers or tank top at the corners of a bottom slot near the cell guides. अब बैक टू सेम थिंग. अब ये थोड़ा सा कंटेनर शिप से हाई टेक हो गए. अभी तक तो हम लोड कर रहे थे, लोड डेंसिटी एवरीथिंग वी वर टेकिंग केयर. नाउ इमेजिन, अभी आपने ये कंटेनर की जो इमेज भी देखी है होल्ड की, सेल गाइड्स हैं, उसमें वो कंटेनर जा रहे हैं 8 हाई 7 हाई जितना भी स्टैक है, और पूरे के पूरे कंटेनर्स का वेट जो है वो उस पर्टिकुलर एरिया में आ रहा है. एंड कंटेनर जो है उसका वेट बेसिकली अगर आप देखोगे तो इट कम्स ऑन द कंटेनर रेस्ट ओनली ऑन 4 पॉइंट्स. तो पूरा का पूरा कंटेनर तो डेक को टच नहीं करता. दैट मीन्स उसका पूरा का पूरा वेट जो है इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली टू दिस 4 कॉर्नर फिटिंग्स. अब यहाँ पे हम डनेज या दूसरी चीज़ तो कुछ नहीं यूज़ करते. तो ये भी बिल्डर ने ही हैज टेकन केयर. उसने बिल्डिंग के टाइम में ही अगर आप देखोगे तो जहाँ कंटेनर रेस्ट करेगा, इसका जो स्टैक रेस्ट करेगा वेदर ऑन डेक और ऑन द टैंक टॉप. अगर आप कभी आपको चांस मिले, अगर आप डीबी टैंक्स में जाएंगे या व्हाट वी कॉल दिस हैच कवर्स उठाते हैं, तो जहाँ पे कंटेनर रेस्ट करते हैं उसके नीचे दे हैव वेल्डेड थिक बीम्स. उनके नीचे थिक बीम्स और गर्डर्स आर रनिंग, जो कि ये सारे के सारे कंटेनर वेट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि आपका टैंक टॉप या हैच कवर जो है ओवर स्ट्रेस ना हो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए वेट की. ना कि कॉर्नर वेट को 4 कॉर्नर पे वेट आ रहा है, उसके नीचे उसने एक बीम लगा दिया, पूरा का पूरा लाइक डनेज जो हमने देखी थी तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है. तो ये स्टैक वेट भी एक्सीड नहीं होना चाहिए. तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज स्टैक वेट. सो स्टैक वेट इज अ मैक्सिमम वेट इज लाइक अ लोड डेंसिटी. एंड कई बार आप के मन में ये भी आता है, कई बार समटाइम पीपल राइट कि स्टैक वेट इज कि एक कंटेनर के ऊपर मैं कितना कंटेनर लोड दे रहा हूँ. दैट इज नॉट कॉल्ड स्टैक वेट, दैट इज कॉल्ड अलाउएबल स्टैकिंग वेट. सो स्टैक वेट इज कि मेरी डेक, टैंक टॉप, हैच कवर्स, उनके ऊपर एक जो ये टियर है, एक जो आपने टावर बनाया है, वो इतने एरिया में ही वेट आ रहा है. तो ये कितना वेट ले सकता है. ये आपके लोडिकेटर में भी उन्होंने डाला होता है, वो आपके रेड लाइट आ जाएगी. फिर आप कंटेनर को, हैवी कंटेनर को उठा के लाइट कंटेनर डालिए, फिर ठीक हो जाएगा. तो इसके साथ दूसरा आ जाता है सर हाँ जी. तो बीम्स कहाँ पे होते हैं जो आपने बताया स्टैक वेट के लिए? बीम्स डेक, अंडर डेक, आपका जो टैंक टॉप है उसके नीचे आपके डबल बॉटम टैंक्स. अगर आप डबल बॉटम में जाओगे एंड इफ यू लुक एट द ऑन द डेक, ऑन द टैंक टॉप, तो आपको वहाँ पे स्टिफनर्स दिखेंगे उसके नीचे, व्हाट वी कॉल द अंडर डेक बीम्स. अगर आप डेक में भी देखिए, जो आपकी डेक होती है उसकी भी स्ट्रेंथनिंग अंडर डेक बीम्स रहते हैं. हर जगह स्ट्रेंथनिंग के लिए दीज आर द स्ट्रेंथनिंग मेंबर्स. तो ये कंस्ट्रक्शन में आई थिंक यू मस्ट हैव स्टडीड इन डिटेल कि आप किसी का भी स्ट्रक्चर देख लीजिए, शेल फ्रेम जो है उसके लिए फ्रेम्स हैं, फॉरवर्ड एंड ऑफ बल्कहेड्स हैं. बल्क कैरियर में या तो उसकी कॉरुगेशन दे देता है या उसके ऊपर वो स्टिफनर्स वेल्ड कर देगा. 4 पीक में वेरी कॉमन. सर ये अपना क्रॉस डेक भी सर मतलब ऐसे बीम काम करता है ना, क्रॉस डेक कंटेनर शिप पे? यस यस, उसके नीचे भी अंडर डेक बीम चलते हैं. यस सर. तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग है. अगर आप उसको एक बार जब समझना शुरू करोगे, जैसे जैसे आप रिपेयर्स कराओगे, ड्राई डॉक्स करोगे, सर्वेयर्स के साथ जाओगे, इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग. हाँ यार देखो शिप कितने, जिसे कहते हैं कि यू नो प्लानिंग से बनता है, हर चीज़ की इट इज़ टेकन केयर. ये तो हो गया. अब इसके साथ आ गया द स्टैक वेट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू कंटेनर इटसेल्फ एंड इट इज नॉर्मली कॉल्ड अलाउएबल स्टैकिंग वेट. अब ये हो गया कि एक कंटेनर अपने ऊपर कितने कंटेनर का वेट ले सकता है बिफोर उसके नीचे से टांगे टूट जाए.
So the allowable stacking weight represents the maximum superimposed load that any container can be subjected to. अब ये कंटेनर की बात हो रही है, स्टैक वेट में हमारे डेक की हैच कवर्स की बात हो रही थी, ये कंटेनर की स्ट्रेंथ आ गई। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन स्टैक वेट, तो दोनों लिख दीजिए, स्टैक वेट इज एप्लीकेबल फॉर दिस एंड allowable stacking weight is valid for the containers. नॉर्मली हम इसे कहते हैं कंटेनर इज 7 स्टैक हाई, 7 स्टैक लोडिंग, 6 स्टैक लोडिंग, 8 स्टैक लोडिंग। जैसे आपने आज देखा कि यू आर लोडिंग 9 ना ही कंटेनर्स, फ्यूचर में वो 10, 11, 12 कितने भी बनने वाले हैं। तो कंटेनर की स्ट्रेंथ होनी चाहिए, नहीं तो नीचे वाले की तो टांगें टूट जाएंगी। तो ये चीज़ जो है आपकी, इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ है, CSE प्लेट। तो स्टैकिंग कैपेबिलिटी ऑफ अ कंटेनर कैन ऑल्सो बी फाउंड ऑन द CSE प्लेट, कि कंटेनर अपने ऊपर कितना वेट ले सकते हैं। सो इसको आपने क्लियरली, कंटेनर शिप वाले तो ठीक है समझ आएंगे, बट जिन्होंने नहीं किए टैंकर्स, तो प्लीज़ ट्राई टू ग्रैस्प दिस थिंग कि स्टैक वेट क्या है और अलाउएबल स्टैकिंग वेट क्या है। टर्म्स दोनों सिमिलर हैं, बट एप्लीकेबिलिटी एक की शिप स्ट्रक्चर पे है, एक की कंटेनर के स्ट्रक्चर पे। चलो ये तो हो गया स्टैक वेट का। इसकी समरी हमने जो जो किया है, the important things to consider as an officer while planning. First is the drafts, trim, required trim to be maintained. Load line zones also need to be checked to avoid exceeding the limits. Port rotation, cargo to be planned as per port rotation to avoid restow of containers, which accounts for an additional cost. First port discharge containers on top. Stresses of the ship to be taken into account. अब आपके पास एक सीरियल वाइज बन गया कि ये चीज़ें आप अपने आंसर में भी लिखते हो, किसी को ओरल में भी बोलते हो, द गाय नोज कि हाँ यार दिस गाय इज मेंटली, आपकी जो थॉट प्रोसेसिंग है वेरी सिस्टमेटिक है कि यार ऐसे ऐसे मैं प्लान करूँगा। नॉट टू एक्सीड विद इन द लिमिट्स एज पर कंपनी स्टैंडर्ड्स। स्ट्रेसेस, स्टैक वेट, उसका भी मैं ध्यान रखूँगा। लोडिंग कंडीशन, नॉट टू एक्सीड इंटैक्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया सेट इन द लोडिंग मैनुअल। Trim and stability booklet for the ship, damage stability to be accounted for, ये भी चीज़ मैं देखूंगा। IMO visibility criteria that all of you know। वैसे तो एग्ज़ाम के लिए बच्चे उसको याद भी कर लेना। शिप्स में तो ठीक है, लोडिकेटर में क्लिक ऑफ अ बटन वो आपको स्टेबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाइड और नॉट सेटिस्फाइड दिखा देगा। 2 ships lengths और 500 meters whichever is less, तो ये भी कंप्लाई होना चाहिए। GM अकाउंटेड फॉर। अब इतना हम डेक लोड ले रहे हैं, जो जैसे हम उस पर देख रहे थे क्या कहते हैं टिम्बर शिप्स पे, कि व्हेन वी आर लोडिंग सो मच कार्गो ऑन डेक, तो नेचुरली GM तो इफेक्ट करेगा ही करेगा। सर वो स्टेबिलिटी विजिबिलिटी का सर प्लीज रिपीट करना। 2 ships length and 2 ships lengths और 500 meters whichever is less। ओके। तो आपकी जो विजिबिलिटी है बेसिकली आपकी फोकसल से आगे आप सी को कितनी दूर तक देख सकते हो। अगर आपने पनामा कैनाल, इफ एनी ऑफ यू हैव क्रॉस्ड पनामा कैनाल, आई डोंट नो नाउअडेज वेदर दे डू इट दैट वे और नॉट। तो वहाँ पे दो इंस्पेक्टर आते हैं, एक ब्रिज पे जाएगा और एक आगे एक छोटी सी बोट लेके बोट में बैठा होगा। सो देन द गाय स्टार्ट्स द रेडार, मिनिमम रेंज पे ले आएगा, फिर वो बोट वाले को बोलता है अच्छा अभी आप नज़दीक आना शुरू हो जाओ। तो फिर वहाँ से देखता है कि आपकी जो बोट है रेडार पे कितने मीटर्स पे डिटेक्ट होती है। अदरवाइज दे चार्ज, दे पुट अ फाइन। अगर IMO या पनामा विजिबिलिटी अलग है तो नेचुरली वो जो पायलट है जिसने ले जाना है, अगर उसको आगे दिखेगा नहीं तो लॉक गेट पे मारेगा। तो इसके लिए अगर आपकी पनामा विजिबिलिटी एक्सीड कर रही है तो ठीक है, फ़ाइन देना पड़ता है। बट सम ऑफ द शिपिंग कंपनीज वो कहते हैं ठीक है यार कोई बात नहीं, फ़ाइन कितना $2000 दे देंगे, एक टीयर और लोड कर लो। बट उसके लिए उसको फिर वो नॉट ओनली 2000, फिर उसको एक्स्ट्रा टग भी लेना पड़ेगा, कुछ भी लेना पड़ेगा, बस जस्ट टू कीप द थिंग्स सेफ। तो इसलिए स्टेबिलिटी क्राइटेरिया जो है, क्योंकि ये आपको पता होता है, ये नहीं है कि चीफ ऑफिसर्स डोंट नो, बट यू आर टू बिजी।
टू मेनी थिंग्स रनिंग। लास्ट मिनट में रात को कई बार रिपोर्ट प्लान आती है, आप नींद में उठ के आके प्लान को देख रहे हो, मिस हो सकता है। बट एटलीस्ट यहाँ पे हम एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे तो ये पॉइंट्स आपके माइंड में रहने चाहिए। IMDG criteria regarding storage segregation to comply. Dangerous containers not to be loaded on outboard rows on higher tiers to deal with emergency. तो ये तो एटलीस्ट सर्वेयर्स के लिए तो आप बोल सकते हो ना कि सर ऐसा करूँगा। फाइनली तो कमर्शियल है, देखते हैं वहाँ पे क्या प्लानिंग हो रही, क्या कर सकते हैं। बट मेरे मन में तो ये है कि IMDG हाँ यार उसको कुछ हुआ, अगर उसमें फ्यूम्स निकल रहे हैं, लीकेज हो रही, तो मैं क्या करूँगा। एक्सट्रीम आउटबोर्ड बोर्ड में तो कुछ भी नहीं कर सकता, हायर अप कंटेनर कुछ भी नहीं कर सकता। रीफर्स, सॉकेट्स, एलोकेशन, एक्सेसिबिलिटी, जैसे आपने कहा टू मॉनिटर द रीफर्स, अगेन आउटर रोज पे डेंजरस, क्योंकि मैंने उसको मॉनिटर तो करना। अगर हम रीफर पढ़ेंगे तो हमने भी था कि आज तक चल रहा था कि यार आई विल नॉट लोड द रीफर्स मोर देन 2 हाई, टुडे वी आर लोडिंग 5 हाई 6 हाई, बिकॉज उसने लैशिंग ब्रिज है उसको ही ऊपर ले गया, 3-4 लैशिंग ब्रिज लगा दी। साइज ऑफ कंटेनर्स, टाइप ऑफ कंटेनर्स, इन सब की हम ध्यान करेंगे, ठीक है। सो आज एंड लैशिंग, फाइनली इट कम्स द लैशिंग, अवेलेबिलिटी ऑफ लैशिंग मटेरियल टू बी कंसीडर्ड, लैशिंग फोर्सेस, एवरीथिंग इज गिवन इन द प्लान, लैशिंग CSM। सर एक बार लैशिंग्स अच्छे से करा देना। लास्ट टाइम भी ओवरऑल में पूछे थे, मतलब बता तो दिए थे, पर वो इतना ज्यादा घुमा देते हैं कि मतलब जैसे हमने हाथ से लैशिंग की हो, और टैंकर वाला बंदा कहाँ से करेगा उस चीज को। करेक्ट, ठीक बच्चे, बिल्कुल सेम चीज़ मेरे माइंड में है। तो मैं भी, मेरे मन में भी ये रहता है कि मैं छोटी छोटी चीज़ें क्यों बोलता हूँ। कंटेनर वाले बोलते होंगे अरे साहब हम सबको ये तो आता ही है। हाँ मेरा पॉइंट आपको इवन स्मॉलेस्ट थिंग कि यार एक 20 फीट कंटेनर को TU क्यों बोलते हैं, ताकि जिन्होंने कंटेनर्स नहीं किए, कंटेनर नहीं देखे, मेरे को तो उनको साथ लेके चलना है ना। यस सर। मतलब सर और सर वो एक बार वो ग्रेन सॉसर नहीं होता, वो पढ़ तो लेते हैं, सॉसर बनाते हैं तो बता दिया, अब किसका बनाओगे, कैसे बनाओगे, कितनी उसमें वो होगी, किया ही नहीं है तो हाउ कैन यू एक्सप्लेन दिस थिंग ना, व्हाई यू आर एक्सपेक्टिंग दिस थिंग्स टू नो आल्सो। यस। सो बच्चे पता क्या होता है, देखिए अब आप क्या हो कि आप चीओ सर ये काम करके ही नहीं आए हो। जब आप चीओ सर बन जाओगे, जब आप लोडिंग करोगे, उसके बाद आपको कोई भी पूछे आप आराम से आंसर कर सकते हो। हाँ, ये बात वही एक बार मतलब टैंकर वाले बंदों के हिसाब से बता देना सर ये सारी चीजें। अब यही है कि मेरे को भी है कि मेरे को भी कई बार लगता है कि हाँ यार ठीक तो है ये, उसको समझ क्यों नहीं आ रहा, बट आई रियलाइज कि यार उसने तो अभी ये काम किया ही नहीं, isn't it? So, जिस दिन Yes, आपने करना शुरू कर दिया, जिस बार आपने एक वॉइस भी किया, दूसरी वॉइस में आपको कोई पूछे आप सारा कुछ उसको समझा दो। यस सर। isn't it? हमारे लिए तो सर लैशिंग के लिए केवल बेल्ट्स होती हैं और शैकल होती है, वही समझ में आती है चीजें। कोई बात नहीं, आई विल ऑफ कोर्स आई विल गो टू द डीप एब्सोल्युटली डेप्थ की, उनको पूछने दीजिए कोई भी क्वेश्चन है, उनसे भी हायर अप रखूंगा मैं कि लैशिंग क्या चीज़ है, क्यों करते हैं, कितनी करनी है, और उसका पर्पस क्या है, एंड मेथड्स क्या क्या हमारे पास। चलो आज के लिए इतना ही। सो यहाँ तक थे कि अब आई थिंक ऑल ऑफ यू मोस्ट ऑफ द थिंग्स, काफ़ी पॉइंट्स तो कॉमन है सारे शिप्स के लिए, इजंट इट? पैरास्टिंग, स्टेबिलिटी, स्ट्रेसेस, पोर्ट रोटेशन, ये सारा कुछ हर शिप्स में एप्लीकेबल है। बट जो जो चीज़ें अलग थी वो भी हमने यहाँ पे देख ली है, एंड आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड यार ये कार्गो प्लानिंग, कार्गो का जो स्टोरेज है ये कंटेनर शिप्स पे कैसे होता है। एंड इन बिटवीन अगर नहीं भी समझ आता, प्लीज़ फील फ्री, वी हैव एम्पल टाइम, कुछ भी हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। सो लकीली आई हैव वर्कड ऑन दिस टाइप ऑफ शिप्स। हमारे टाइम और था, ये आजकल की तरह नहीं था कि कंटेनर है तो कंटेनर पे ही जाएगा, टैंकर वाला टैंकर पे नहीं। हमारा तो होता है नेक्स्ट टाइम आओ पहले यही पूछते थे यार कौन सा शिप दे रहे हो, बल्क कैरियर दे रहे हो, टैंकर दे रहे हो, कंटेनर दे रहे हो। कंटेनर तो कम थे, जनरल कार्गो दे रहे हो, तो वी वर रोटेटेड। तो उससे चलो इट्स बाय नेचर, आज आपको एक MD बना दिया, स्पेशलाइज बना दिया कि भाई कंटेनर वाला कंटेनर स्पेशलिस्ट है, इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। टैंकर से टैंकर पे मूव नहीं कर रहे, प्रोडक्ट वाले को प्रोडक्ट पे रख रहे हैं, केमिकल को केमिकल पे रख रहे हैं, क्रूड वाले को क्रूड पे ही रख रहे हैं। फर्दर सब फर्दर डिवीजन कर दिया कि हाँ भाई इसको ऐसा ही करो। अब बेचारे जो केमिकल है वो निकलना चाहते नहीं निकल सकते। हर कोई यही चाहता है कि भाई केमिकल ट्रेड से निकल जाए।
इट इज टफ, जीवोसस के लिए तो टफ है, इट इज हैजर्डस आई विल से। चलो ठीक है, सो फार एनी क्वेश्चंस जहाँ तक हमने किया है? या थैंक यू सर। या थैंक यू सर। या ओके, बाय बाय, या टेक